Alrighty then, ladies and gentlemen, welcome to Esportz Premier Series 2021, brought to you by Hell Energy Drink and Joe Shap. I'm your cast Assassin 47, and joining me on the desk is I guess he needs no introduction because he has been on a lot of indie desks, and to be honest, he's sort of that up and coming caster as well, who's been making waves in the scene as well. So I welcome Dinkar onto the desk with me for qualifier number 2, ladies and gentlemen. That's right, you guys are watching Esportz Premier Series 2021 qualifier number 2. How are you feeling, Dinkar? Welcome to the desk, by the way, once again. जी हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके स्पोर्ट्स डेस्क पे। पिछला जो क्वालिफायर्स था वो मैंने स्क्रीन के पीछे बैठकर देखा था, एंड आज यहाँ पर आपके साथ जुड़ के ये कास्ट करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जो कुछ चेहरे थे जो स्पोर्ट्स के चैनल पे मुझे पहले नजर आए थे, मेरे साथ जो देखते थे वो भी नजर आ रहे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सपोर्ट को देख के। एंड अगर हम बात करें क्वालिफायर्स 2 की शुरुआत की, गॉडलाइक स्पोर्ट्स यहाँ पर पहले ही क्वालिफायर्स में आ रहा है, पहले ही गेम में आ रहा है क्वालिफायर्स 2 के, तो उनको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ खबरें आ रही हैं कि डेथ मेकर अवेलेबल नहीं है, तो वो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से स्पाइस अप करते हैं चीज़ों को। Okay. Dinkar with some insider information. So, बहुत ही मजा आने वाला है. Let's see how that change works out. But at the same time, guys, once again, I welcome you all to the second iteration of the Esportz Premier Series 2021. And it has definitely been an interesting run throughout qualifier number 1 as well, where I was joined on the desk alongside Tanvi, and we walked you through the entire qualifier number 1 as well. Now, qualifier number 1 was taken away by Global Esports for sure, but yeah, it was an amazing, a grand one for sure, because there were a lot of teams that took part in qualifier number 1, and they made their way onto round of 16, round of 8, and eventually onto its semifinals and the grand finals as well. Underdog teams such as Purpose Esports, they made it till the semifinals, and yeah, it's truly amazing to see that with a format like this coming in from esports.in. In this specific tournament, a lot of underdog teams are getting the chance as well to make it to the top and just go ahead and compete with the best of the teams out there in the country as well. Talking about the format, by the way, let's quickly have a look at the format of this specific tournament, because I know you guys might be like qualifier number 1 maybe same ही था, but at the same time a lot of viewers might not have tuned in for qualifier number 1. So उनके लिए एक quick recap. Dinkar, why don't you go ahead and take it over? या राउंड ऑफ 64 जो कि बेस्ट ऑफ 1 का फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। 64 टीम्स में से फिर हमें देखने को मिलेंगी राउंड ऑफ 32, जिसमें 32 टीम्स होंगी, उनमें बेस्ट ऑफ 1 हमें देखने को मिलने वाला है। 3 गेम्स रोज आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 13 में राउंड ऑफ 64 में, 14 से 17 तारीख तक राउंड ऑफ 32 में। उसके बाद बढ़ेंगे हम राउंड ऑफ 16 में, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है एक और बेस्ट ऑफ 1 का सिनेरियो 18 से 28 में तक, जो 18 से 28 में जाएंगे, वो हमारा फेज 1 खत्म होगा। देन हम मूव करते हैं फेज 2 में, जहां पर एक्शन बहुत ज्यादा स्पाइस अप हो जाएगा, क्योंकि उन सभी अंडरडॉग टीम्स में से जो बड़ी टीम्स हैं उनमें से छट के पूरी तरह से हमें 8 टीम्स मिल जाएंगी। उन 8 टीम्स के बीच में बेस्ट ऑफ 3 का सिनेरियो होगा 21 मई से 23 मई तक, एंड फिर आखिरी में ग्रैंड फिनाले बेस्ट ऑफ 5 का 24 मई को, जिसमें एक्शन की कोई भी कमी नहीं होगी। एक्शन की कमी की बात करें असासिन, मुझे ऐसा लगता है पहले ही दिन से हमें उतना एक्शन देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई मीन सी, इतनी सारी टीम्स है, राइट? इतनी सारी नई टीम्स आई है जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्वालिफायर नंबर 2 के लिए। सो डेफिनेटली बहुत सारे धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो व्हाट ऑल ऑफ दीस टीम्स आर फाइटिंग फॉर, राइट? द प्राइस पूल फॉर Esports Premier Series 2021 is a total of 14 lakh Indian rupees. That's right. And each qualifier consists of a lakh Indian rupees as well. So एक qualifier का जो winner होगा वो 1 lakh rupees ले जाएगा, and is gonna fix his slot in the LAN finale that is going to be happening later down in December. And ऐसे हमारे 4 qualifiers में से 4 winners निकलेंगे, और वो 4 teams आपस में LAN finale में compete करेंगे, and they're going to be taking home I guess the bifurcation is kind of like 10 lakhs के अंदर 4 team के बीच में. It's really really interesting. So yeah, that specific details is going to be shared with you guys as well, so don't worry. But it's truly fantastic to see newer teams making their way in towards qualifier number 2, and the schedule for the day is gonna show you what exactly I'm talking about as well. So if we can have the schedule on the screen, we will get to know what am I exactly talking about. So first game of the day then is gonna be Godlike Esports versus WEIRDITY. Now WEIRDITY is a newer team and is participating in the Esports Premier Series for the very first time. So वो एक exciting match होगा. देखते हैं कैसे Godlike Esports के सामने against the Titan, how exactly they're going to be playing off
in that specific match. Second match of the day is going to be Copiers versus Pride Nation. Now, Pride Nation हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं qualifier number 1 में. Pride Nation have made it to round of 16 as well in qualifier number 1, but then unfortunately round of 16 के match में वो हार गए, so they were not able to make it to round of 8. But yeah, maybe qualifier number 2 is their chance to go ahead and get that redemption as well. And the third game of the day, which is going to be the final one, is going to be Blood Circle Esports and Thundering Eagles. So, Dinkar, क्या लगता है आज के मैचेस एक्साइटिंग होंगे कि नहीं? बिल्कुल एक्साइटिंग होंगे। देखिए शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है, एंड भी उतनी बेहतरीन होगी। मेरी तरफ से तीनों ही गेम्स जो हैं उसमें मज़ा आने वाला है। अपने बात की अंडरडॉग्स की, देखिए मुझे अंडरडॉग्स को खेलते देखना बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पास होता है एक सरप्राइज एलिमेंट। देखिए गॉडलाइक को हमने बहुत बार देखा हुआ है, एंड उनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे जहां पर वो दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं। तो ये अंडरडॉग टीम्स को अलाउ करता है कि वो उनके बारे में और रिसर्च कर पाए, एंड उनका जो गेम है वो रीड कर पाए। आज शायद वो चीज़ हो सकती है। क्या हमें एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है असासिन? Maybe, you never know. जैसे कि आपने एकदम बेहतरीन तरीके से बोला कि गॉडलाइक esports is a tier 1 team, right? So उनके बहुत सारे वॉर्ड्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आराम से उनको रीड कर सकते हैं, मे बी उनके स्ट्रेटेजीज के थ्रू देख सकते हैं बहुत सारे अंडरडॉग टीम्स, एंड मे बी कम अप विद अ काउंटर स्ट्रैट एज वेल. बट एट द सेम टाइम can't forget the fact that गॉडलाइक esports are a tier 1 team. So being a tier 1 team, you always have that you always have that specific element as well, right? And I guess the game is ready as well, so we are definitely going to be carrying forward this specific conversation inside the game. So why don't we quickly switch over towards the draft screen, where we're going to be seeing both of these teams picking up the agents of their specific choice. So दिनकर क्या लगता है कौन से agents देखने को मिलेंगे in this specific match? देखिए जो पहले इन्फॉर्मेशन आई थी थोड़ी देर पहले कि डेथमेकर नहीं खेल रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि जेट कौन खेलते हैं, फ्लेक्स आते हैं कि नहीं। वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हैवान क्या एजेंट पिक करेंगे, हैवान का जो वोलेटिलिटी है, जिस तरह से वो चेंज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप कभी कभी बाइंड में देखेंगे उनको स्काई के साथ खेलते हुए, फिर दूसरा एजेंट चेंज करते, फिनिक्स के साथ भी खेलते हुए कभी कभी नजर आते कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में। आज यहाँ पर एसेंट का हेवन का मैप होने वाला है, एंड हेवन में देखते हैं हैवान मोस्टली हमें फिनिक्स खेलते हुए नजर आए जो पिछले कुछ गेम्स हैं। तो आज हमें वो चीज़ देखने को मिलती है कि नहीं, वो हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा। फ्लेक्स यहाँ पर योरू पे जा रहे हैं असासिन, ये एक अच्छा पिक हो सकता है, बट एट द सेम टाइम योरू जो है कभी कभी डिजास्टरस परफॉर्मेंस भी लेके आ जाते हैं। तो लेट्स सी आज क्या हमें सरप्राइज देखने को मिलता है। ओह फाइनली ही इज ऑन जेट as expected. Yeah, Flex is gonna go ahead and pick up that jet, and yeah, Weirdo from the side of Weirdity, right? Wow, that sort of sings up Weirdo from Weirdity. He's gonna be playing the Yoru. So yeah, Yoru देखने को मिलेगा Weirdity के तरफ से, and yeah, from the side of Godlike Esports, right? I guess it's truly interesting to see Flex playing in the active 5 lineup as well. So वो एक interesting change रहेगा, देखने को मिलेगा Flex कैसे खेल रहे हैं. Usually Flex, he likes to play agents like so he definitely is a duelist for Godlike Esports, but at the same time he usually plays Raze or something like Reyna, right? Because Deathmaker always goes ahead and insta-logs Jet. He's that one player like any other ranked game where all of these players just go ahead and insta-log a duelist. So Deathmaker goes ahead and insta-logs that Jet as well. But yeah, Dinkar, क्या लगता है Flex on the Jet? Is he going to be flexible enough for the team, or are we going to be seeing some surprises? मैं समझता हूँ कि फ्लेक्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बट एक चीज़ जो देखी होगी आपने सासिन, जब भी गॉडलाइक किसी टूर्नामेंट में जाती है जहाँ पर वो अंडरडॉग्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो उस मैच को एज एन एक्सपेरिमेंट भी कभी कभी लेते हैं। एंड आज मुझे वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट होता हुआ नजर आ भी रहा है, क्योंकि आप देखिए हैवान जो उन्होंने साइफर पिक किया है। अगर हम बात करें हेवन पे, साइफर की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, बट द सेम टाइम हैवान क्या उस रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। वो मैं देखना चाहूँगा आज यहाँ पर, क्योंकि जब भी गॉडलाइक का मैच होता है हैवान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उनके फैंस की, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। आज देखते हैं वो चीज़ होती है कि नहीं। बिल्कुल, जैसे कि ऑलराइट कूल। सो जैसे कि आपने बताया राइट कि हैवान एक सेंटिनल खेलने वाले हैं। नाउ वी ऑल नो दैट गॉडलाइक esports का सेंटिनल वाइट हॉर्स है, एंड ही डज अ प्रीटी गुड जॉब एट इट एज वेल. He plays Cypher, he plays Killjoy, and the way he puts up the flank watch and all of that gadgets to use as well, right? It's pretty impressive. Now seeing Havan on the Sentinel is definitely going to be interesting, because Havan usually plays the initiator. He picks up Sky, or sometimes Havan on bind. He likes to play Brimstone as well. Controller का भी role कभी उठा लेते हैं. So it's truly interesting. Even पे it's going to be Havan to go on the Cypher. And yeah, like Godlike Esports, they're going to be starting off on the defense, Dinkar.
जी, एंड ये वीआईडीटी को एक एक अपॉर्चुनिटी देता है। हमने देखा हुआ है कि कितनी बार जब भी आप अटैकर साइड पे होते हैं, तो कितना भी आपका कभी अगर गन पावर हल्का-फुल्का वीक भी है, तो आप सिर्फ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। काफ़ी गेम्स हमने ई-स्पोर्ट्स के क्वालिफायर 1 जो थे उसमें भी देखा था कि जैसे ही डिफेंडर से अटैकर्स का स्विच हुआ था, गेम का जो पूरा मोमेंटम था, फ्लो था, वो चेंज हो गया था। क्या आज वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी? सोवा लिया गया है वहाँ पर, अगर मैं बात करूँ वीआईडीटी की तरफ से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। मैं रिसेंटली खुद सोवा मेन पे शिफ्ट हो चुका हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड हेवन पे एक्चुअली जो जो उसकी भूमिका होती है वो है क्योंकि अगर आप एक अच्छा रिकॉन डार्ट एंड आप पूरी तरह से गेम को रीड कर सकते हैं कहाँ का पुश आ सकता है, तो मैं देखना चाहूंगा वहां पर वो किस तरह से करते हैं। साथ साथ में अटैकिंग पे हैं, तो शायद वीएडीटी यहाँ पर किसी सरप्राइज के साथ आ सकती है। Definitely, there's that trend going on as well, right? कि सोवा का जो नए नए लाइनअप्स लेके आते हैं प्लेयर्स, जी so maybe दिनकर भी नया नया कुछ लाइनअप लाया होगा, so people are gonna go all like average Jignesh or what. But yeah, that definitely is gonna bring in that element as well. But guys, jokes aside, I guess it's truly time for us to quickly jump straight into the game. It's gonna be WEIRDITY versus GODLIKE Esports. So let the action begin. Dinkar, why don't you take over? This is a nice spot. या बिल्कुल, एक्शन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। पहला राउंड आ चुका है। वीआरडीटी जो है वो यहाँ पर अटैक पे स्टार्ट करते हुए एक मैप एडवांटेज शुरुआत में मिल चुका है, बट क्या उस एडवांटेज का जस्टिस करेंगे, वो यहाँ पर एक बड़ा सवाल होने वाला है। मैं जरूर चाहूंगा कि एक अच्छी खासी लीड लेके यहाँ पर डिफेंसिव हाफ में जाएं ताकि इनके चांसेस रहें, बट एट द सेम टाइम गॉडलाइक स्पोर्ट्स ये कमबैक चैंपियंस रह चुके हैं। मैंने इनको काफी बार देखा है ऐसी स्ट्रैटेजीज पर कभी कभी हमें लगता है जहां पर गॉडलाइक स्पोर्ट्स सब गेम से बाहर हो गई है, तब एकदम से वापसी कर लेते हैं। पहला राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके लिए लाता है दूसरा राउंड। पहला राउंड आप जीते जाते हैं बाई के लिए, एंड ड्रेक्सी यहाँ पर काफी ज्यादा अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हुए ऑप के लिए वहां पर अपने आप को थोड़ा सा रिस्क पे डालता है, बट रिकॉन डार्ट का पूरा फायदा उनको मिला, एक पेड़ को स्पॉट भी कर दिया। इन्हीं रिकॉन डार्ट्स की बात करता फ्लेक्स वहां पर काफी अग्रेसिव खेलते हुए, एंड ये डिफेंडर्स इतना बढ़िया खेल रहे हैं। एक किल वहां पर जरूर निकाला, डैश का इस्तेमाल किया, पीछे एक प्लेयर जरूर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बी विंडो में यहाँ पर 3 प्लेयर्स जरूर वहां पर वीआईडीटी के रोटेट करके आ चुके हैं, बट जो पहला किल यहाँ पर गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने निकाला है उसने वीआईडीटी का पूरा जो रश था उसको डेंट कर दिया। वीआईडीटी की अगर हम बात करें अभी भी सिचुएशन को वे कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी गॉडलाइक स्पोर्ट्स पहले ही राउंड में इतना आगे आकर खेलेगा। स्पेस कंट्रोल बहुत ज्यादा बेहतरीन गॉडलाइक की तरफ से। वीआईडीटी अभी भी कुछ मुझे सोचता हुआ नजर आ रहा है। पहले ए पुश की तरफ जा रहे थे, जैसे उनको वहां पर एक शॉट लगा सी पुश की तरफ गए हैं, बट व्हाइट हॉर्स वहां पर पूरी तरह से रेडी, एंड व्हाइट हॉर्स अगर यहाँ पर एक शॉट कनेक्ट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से गॉडलाइक स्पोर्ट्स को ये राउंड मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम गॉडलाइक स्पोर्ट्स की बात करें, हेल्थ जो है जेट का वो बहुत ज्यादा लो है। फ्लेक्स वहां पर फिर भी एक और किल निकालते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है, एंड यहाँ पर एक किल और निकाल के वीआईडीटी का जो रश था जिसके बात करते हैं उसको पूरी तरह से डेंट किया गया। वेलवेट थोड़ा सा रेशन दिखाने की जरूर कोशिश करें, डिस्मिस का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ गए, कभी का एरिया उन्होंने जरूर क्लियर किया, बट देखिए असासिन कोई भी बैकस्टैब नहीं आ रहा है गॉडलाइक स्पोर्ट्स की तरफ से। उनका जो पूरा भी ध्यान है वो सी साइड के ऊपर है। 4v3 का सिचुएशन है। वीआईडीटी अभी भी यहाँ पर पीछे हट रही है, एसएमएक्स वहां पर एक और किल निकालेंगे पूरा फायदा उठाते हुए। उसको जो अग्रेशन था जो नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल वीआईडीटी की तरफ से, उसका फायदा यहाँ पर उठाया गया गॉडलाइक स्पोर्ट्स की तरफ से। पहला राउंड काफी आसान तरीके से निकाला है गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने। 1-0 फॉर गॉडलाइक। That's true. That's absolutely true, Dinkar. The way walked us through that entire round as well, right? It was beautifully played out by GODLIKE Esports, but at the same time, मेरे को लगता है कि WEIRDITY का जो अटैक था वो बड़ा disjointed था, and उनका जो C push था could have been a little bit more better, but at the same time GODLIKE Esports amazing hold. अगर तुम लोग ने उधर टीम वर्क भी देखा होगा GODLIKE Esports का, there was always one player watching out for the recon dark coming in from WEIRDITY, and then there was the Reina as well who was aggressive along with Flex. So yeah, बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन over to the C side. But talking about बेहतरीन प्रदर्शंस, look at Flex. He's gonna go ahead and take down Rabu onto 40, and I guess Hevan is gonna be there for the immediate trade as well, and that is gonna be GODLIKE Esports clean sweeping that specific round, getting the second round of the board. And WEIRDITY, I guess उनके लिए वो specific round थोड़ा weird भी रहेगा because they were expecting a kill or two coming in or towards GODLIKE Esports, but yeah, sadly they were only able to get one. ये एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन नजर आई है गॉडलाइक की तरफ से अभी तक, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं जो स्पेस कंट्रोल जो मैप कंट्रोल है वो शुरुआत से अपने आप रखा है। रेक्सी फिर से यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड साइड पे एंट्री नहीं दे रहे हैं, जिसका पूरा फायदा अभी तक गॉडलाइक को मिला है। 2 राउंड्स में किसी भी तरह कोई कंपटीशन अभी किल देखने को नहीं मिला है। शुरुआती किल निकाला जाता है गॉडलाइक की तरफ से, एंड उसके बाद भी अग्रेशन कंटिन्यू करके रखते हैं एंड पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाया वीआईडीटी को। क्या हमें फिर से देखने को मिलेगा वो चीज इस बार भी? यहाँ पर रिकॉन जो है
बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। गार्डियन रेडी है, एसएमएक्स पहला किल निकालेंगे, वेलवेट इंस्टेंटली टेर आउट जरूर करते हैं। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है वीआईडी के लिए इस तरफ से, क्योंकि पहली बार उनको यहाँ पर साइड पे एंट्री मिलेगी, बट किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे। फ्लेक्स यहाँ पर पूरी तरह से रोटेट करके आ चुका है, इसको भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वीआईडी। 2 किल निकाले गए, 4v2 में कन्वर्ट कर दिया। जो इनिशियल एडवांटेज लिया गया था वीआईडी की तरफ से वो पूरी तरह से छीन लिया गया। फ्लेक्स आउटराउंड का इस्तेमाल करेंगे, प्लेयर को स्पॉट जरूर कर लिया। फ्लेक्स वहां पर वो रुक नहीं रहे हैं, तीसरा किल उन्होंने निकाला। व्हाइट हॉर्स है वो लास्ट नेल इन द कॉफिन डालेंगे। एंड इसी के साथ साथ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स तीसरे राउंड में भी क्लीन स्वीप करती हुई। इस राउंड में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन था, बट वही था कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फ्लेक्स पूरी तरह से रोटेट करके आ जाएंगे पीछे की तरफ से। एंड फिर जो उनका ब्लेड स्टॉर्म था उसने कोई भी चूक वहां नहीं किया। एक और राउंड गॉडलाइक के फेवर में। That goes there. True that, WEIRDITY. I mean, once again, their attack over towards the A side, right? It was quite readable coming in as well. And GODLIKE Esports, I guess they're going to be very happy with getting the third round of the board and destroying the economy coming in from WEIRDITY. WEIRDITY को force buy करना पड़ेगा, and with the Spectres against the Vandals and the Phantoms, I'm not really sure if they're going to be able to do much. देखते हैं क्या होता है. But for now, though, Flex is once again aggressive over towards Yearlong, and maybe he's just going to get the frag on towards the stage. There you go. Through the wall, that's going to be a straight up headshot out towards Weirdo. बेहतरीन हेडशॉट यहाँ पर निकाला है एसएमएक्स इसको काफी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हुए। जो वीआईडी का स्क्वाड है, वीआईडी की टीम है, दर्शक बन के रह गई है। देखिए 4 किल निकाले गए, फ्लेक्स वो फिर से आखिरी किल निकालेंगे, आखिरी जो टच है वो उन्होंने दिया। इसी के साथ साथ गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स एक और राउंड लेके जाता हुआ 4 राउंड गॉडलाइक जीत चुकी है। वीआईडी की तरफ से अभी तक कोई जो रियल कंपटीशन है वो देखने को नहीं मिला। मैं चाहूंगा यहाँ पर अब इस बार भी जब पहला किल निकाला गया तब भी बैकस्टैब चेक करने के लिए कोई नहीं था। अगर आपके ऊपर 2 से 3 राउंड में बैकस्टैब आ रहा है तो अब तक यहाँ पर ज्यादा अवेयर हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं नजर आया मुझे। गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स का पूरा फायदा उठाते हुए 4 राउंड निकाले हैं। एंड असासिन ये जो 4 राउंड्स हैं ये बिना डेथमेकर के हैं, अभी डेथमेकर आए नहीं है इस राउंड में। आई मीन डेथमेकर आज खेल नहीं रहे हैं, बट स्टिल जो डोमिनेंस है उसमें कोई भी कमी नहीं नजर आ रही है। डेक्स यहाँ पर फिर से जाते हुए रिकॉन के साथ एंड अगेन एक सक्सेसफुल रिकॉन देखने को मिलेगा हमें असासिन। Definitely, see that's that element of surprise as well, right? That comes into a game. अगर Deathmaker available नहीं हुए, or if any other player is not playing, there's always that one extra backup as well in that specific team, and that goes on to show as well that Cronton and the entire team of GODLIKE Esports, they have that confidence as well going into this specific team. कि चलो 1-2 player नहीं होगा तो भी चलेगा. The entire team is gonna go ahead and put that same performance. And to be honest, there's not much to talk about that specific round as well, because GODLIKE Esports अभी तो सिर्फ W gaming ही चल रहा है guys. They're gonna keep on rushing. They're gonna keep on the pressure on towards WEIRDITY, and WEIRDITY most probably are gonna fall down to that pressure as well. But at the same time, props to WEIRDITY for not giving up and keeping up with the action alongside GODLIKE Esports. And yeah, WEIRDITY they're definitely gonna try out new stuff. They're gonna try and find loopholes into the defense coming in from GODLIKE Esports. And mind you, this is an attacker side map, guys. So WEIRDITY agar if they're not able to at least get minimum of 4 rounds on their attack, then it's gonna be a bit of a problem for that defense as well. ये देखिए फिर से उसी लेवल का डोमिनेशन, बिल्कुल देरी नहीं की जा रही है, कोई भी यहाँ पर मर्सी नहीं दिखाई जा रही है। मैं कहूँगा वो सही शब्द होगा यहाँ पर। फ्लेक्स ने एंगल जरूर ब्लॉक किया, बट पीछे उनके अभी भी प्लेयर है। फ्लेक्स अभी भी जो डब्ल्यू गेमिंग की आप बात करते थे वो दिखा रहे हैं। जवान उस तरफ एक किल निकालेंगे। फ्लेक्स ने अपने आप को रिपोजिशन जरूर किया था टेलविन का इस्तेमाल करके, एंड प्लेयर को फिर से स्पॉट किया एंड पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया यहाँ पर वीआईडी की टीम को गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स 6ठा राउंड लेके जाते हुए। एंड ये एक फ्लॉलेस राउंड था। एंड अब आप देखिए जो इकोनॉमी है वो शुरुआत से ही वीआईडी के फेवर में नहीं गई है, क्योंकि अभी तक वो एक भी राउंड नहीं जीत पाए। एट द सेम टाइम उनके जो हाईएस्ट जो फ्रैगर है उनके पास मात्र 3 किल है। ये कुछ दिखाता है आपको कि 6 राउंड में अगर आपके पास टॉप फ्रैगर के पास 3 किल्स है तो वो दिखाता है कि किस तरह से आपका परफॉर्मेंस अभी तक रहा है। मैं जरूर कमबैक की उम्मीद रखता हूं, एंड काफी मजा आएगा अगर एक कमबैक आए, एक क्लोज गेम हो। बट एट द सेम टाइम अभी जिस तरह से गेम चल रहा है, जो फ्लो है इस गेम को इस सिचुएशन को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फ्लेक्स फिर से यहाँ पर आगे जाते हुए एंड फिर से एक किल निकाल लिया बिना किसी रेसिंग के, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, उनको कंफर्म किया। एंड जिस चीज की मैं बात कर रहा थोड़ी देर पहले, ऐसा लग रहा है कि वीआईडी के प्लेयर सिर्फ दर्शक बने हुए हैं। फ्लेम यहाँ पर फिर से पीक के लिए जाते हुए ये अग्रेसिव पीक उनको जरूर भारी पड़ सकता है। रेक्सी यहाँ पर उल्टी के साथ आते हुए एक किल उन्होंने निकाला। लास्ट के 2 प्लेयर को भी स्पॉट कर लेंगे। फ्लेक्स एक और किल निकालेंगे। आखिरी प्लेयर इंतजार कर रहे हैं कि कब एक पीक आएगा एंड कब कंफर्म होंगे। जी हाँ, फ्लेक्स के लिए 4K एंड गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के लिए 7वां राउंड। I guess that specific Viper from the side of WEIRDITY, right, was waiting for Flex to push in from C longs, because Flex has been doing that from quite a few rounds now, and he also is bringing in that element of surprise every single round कि कभी C long से push कर लिया, कभी garage से push कर लिया, कभी B से push कर लिया, कभी A से push कर लिया। So GODLIKE Esports are also switching things up, and WEIRDITY they're like यार करे तो करे क्या, like क्या कर सकते हैं अभी। this is pushing in, they're getting into our own turf, and wow, have fun.
Okay. Same spot पे दो trap है. A little bit of a mischief coming in from Hevan. जी हाँ। एंड अगर बात करें अभी के लिए वीआरडीटी की, देखिए उनके लिए भी एक लर्निंग कर्व हो सकता है मेरे हिसाब से, एक अपॉर्चुनिटी है देखने के लिए कि वो अभी कहाँ स्टैंड करें और उनको क्या क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है एक बड़ी टीम को चैलेंज करने के लिए। एसएमएक्स ऑन द अदर हैंड वेडो के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लेम को भी कंफर्म किया गया। एसएमएक्स इस बार जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की वो अपने सर पर लेते हुए एसएमएक्स ने यहाँ पर एक और किल निकाल लिया है। वीआरडीटी के आखिरी प्लेयर वाइपर एंड एक रेप्लिका देखने को मिला है पिछले राउंड का, बट एक अलग साइड पर, यहाँ पर ए साइड पर इस बार डैमेज है वो देखने को मिला। हैवान यहाँ पर अपना ही पिक्चर क्लिक करते हुए इसी के साथ साथ गॉडलाइक स्पोर्ट्स 8वां राउंड लेके जाएगी। एंड अगर हम बात करें गॉडलाइक के फैंस की, वो काफी खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। गॉडलाइक पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। फ्लेक्स के पास 18 किल्स है, मात्र 2 डेथ्स पे 9 का केडी उनका मेंटेन है अभी के लिए। एसएमएक्स ने भी पिछले राउंड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया वहां पर 8-0। एंड असासिन अगर हम बात करें, गेम काफी एक तेज एंड की तरफ बढ़ रहा है। तेज एंड तो डेफिनेटली दिख रहा है मेरे को, एंड एट द सेम टाइम वो कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है, राइट, बिटवीन बोथ ऑफ दीस टीम्स। Then you can flex. This time it's not gonna work flex because the blade storms they're not gonna be that fast against the phantoms and the vandals coming in from side of Weirdity as well. And the entirety of Weirdity, they're just waiting outside the C-Long position as well. The minute and 20 seconds left on the clock, I guess Weirdity, उनके पास 5 अल्टीमेट रेडी है दिनकर, 5 अल्टीमेट, एंड आई गेस ये वो राउंड होगा जहाँ पे वो अल्टीमेट्स को यूज करेंगे, एंड मे बी दे जस्ट गोना पुट अप दैट फर्स्ट ऑन द बोर्ड। एंड वीआरडीटी जिस तरह से इस बार बैकस्टैप होल्ड करके बैठे हुए थे, एसएमएक्स को स्टॉप, माय गॉड, स्पॉट किया बट किल नहीं निकाल पाए। एसएमएक्स को कंफर्म करके दूसरा किल निकाला, डिसमिस का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ से एम्प्रेस उनकी तरफ से रेडी है, एक और किल। एंड इसी के साथ साथ एक राउंड जो हमें लग रहा था शायद वीआरडीटी लेके जाने वाली है, गॉडलाइक स्पोर्ट्स नहीं, एसएमएक्स ने एक्चुअली उसको पूरी तरह से वो जो चांसेस थे उनको यहाँ से हटा दिया, उनको निकाल दिया। एंड फिर से यहाँ पर वीआरडीटी के हाथ में हार लगी है। 9-0 का स्कोर लाइन, गॉडलाइक स्पोर्ट्स एक अच्छी जीत की तरफ बढ़ती हुई। एसएमएक्स फ्लेक्स दोनों ही काफी अच्छे तरीके से फ्रैग आउट करते हुए, एंड वीआरडीटी के पास अभी के लिए कोई जवाब नहीं है, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। शुरुआत में एक ए पुश के लिए गए, फिर वहाँ पर एक सी पुश के लिए गए, क्या हमें एक बी पुश देखने को मिल सकता है? क्योंकि जब आपके लिए कुछ भी काम ना कर रहा हो तो बी पे जाइए, प्लांट करिए एंड होप करिए कि वो जो जो रीटेक है वो काम ना करे ऑपोजिशन का। फ्लेक्स यहाँ पर जाएंगे एंड इस बार वहाँ पर जरूर ले रहा है का इस्तेमाल करके उनको पीछे भेजा गया, एंड रघु ऑन फाइनली उन्होंने कनेक्ट किया, फ्लेक्स को कंफर्म किया, बट अभी भी हैवान रेडी है। एंड जब तक हैवान है तब तक चांसेस हैं गॉडलाइक के, बट उनको भी कंफर्म करेंगे। रेक्सी, ओ माय गॉड, उनकी जो ओडिन है वो निकलने वाले, पहले हेडशॉट कनेक्ट किया वेलवेट के ऊपर, एंड उसके बाद बॉल बैंक करके एक और प्लेयर को कंफर्म कर दिया। 3v2 का सिनेरियो, ओमेन की हेल्थ से 30 एचपी, प्लेयर को स्पॉट किया, बट यहाँ पर ओमेन फिर भी वो किल निकालेंगे। एसएमएक्स ऑन द अदर हैंड फिर से उन्होंने जो वीआरडीटी के चांसेस थे उसको पूरी तरह से डेंट कर दिया है। पिछले 3 राउंड से ये गॉडलाइक वर्सेस वीआरडीटी नहीं हो रहा है, ये एसएमएक्स वर्सेस वीआरडीटी हो रहा है, एंड हर बार अभी तक एसएमएक्स को जीत मिली है। अगेन विक्ट्री प्लेस, क्या इस बार जाएंगे? स्पाइक उनके पास जरूर है, क्या हमें पहला प्लांट देखने को मिल सकता है वीआरडीटी की तरफ से? जी हाँ, प्लांट जरूर हो। एक्चुअली अभी प्लांट के लिए नहीं गए, स्मोक के लिए गए थे, एंड यहाँ पर अलाउ किया व्हाइट हॉर्स को साइड के अंदर आने का, एंड व्हाइट हॉर्स मेक श्योर करेंगे कि प्लांट यहाँ पर डिनाई किया जाएगा, एंड एक और राउंड गॉडलाइक इसको खत्म हो जाएगा। White Horse finally pulling out that pistol in order to get the kill as well, making it look easy for GODLIKE Esports. But at the same time, guys, I know, तुम लोग सबको लग रहा होगा कि ये बड़ा unfair हो रहा है, GODLIKE versus an underdog team. But to be honest, guys, see, this sort of gives them the chance as well to get better at the game and to analyze just where exactly they stand, right? And that's the whole point of Esports Premier Series as well. Let's quickly have a look at the player card coming in from both of these arenas. In this specific server, SMX versus Velvet. You guys can definitely see the contrast between both of these duelists, right? It's definitely SMX leading the boards right now with 18 kills, 3 deaths, and 1 assist. Whereas Velvet is sitting at 5 kills and 10 deaths. So that sort of shows you the contrast as well that they got like Esports. They definitely have the specific match going on in their favor. But yeah, Weirdity, I guess, see guys, unfair तो बिल्कुल भी है, but at the same time, सबके लिए same है यार. Like, you know, किसी को तो fight करना पड़ेगा. Definitely, सबके लिए same ही है. Some लोग, you know, they're gonna take on the best of the best, and they're gonna eventually improve. And look at SMX, dude. SMX is on a hunt, and he's looking to get the frag on towards Weirdo as well. You've got to be kidding me, God, like Esports, what have you come down to, guys? एनीवेज गाइस, जो 2 शब्द होते हैं खराब लगा, मेरे हिसाब से इसी सिचुएशन के लिए बनाए गए थे वो,
एनीवेज 11-0 हो चुका है स्कोर लाइन गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स से क्लीन स्वीप की तरफ देखते हुए पहला राउंड एंड राउंड ऑफ 64 में आप एक्सपेक्ट करेंगे गॉडलाइक जैसी टीम को किसी तरह का स्कोर लाइन लेके आने की। वियर्डिटी ऑन द अदर हैंड, जिस तरह से हम बात करते हैं एक लर्निंग कर्व उनके लिए होने वाला है। अगेन 5v5 का सिनेरियो इस बार देखते हैं क्या हमें फिर से एक सी पुश देखने को मिलेगा। जो यू नो गैराज पुश किया है उन्होंने, उसमें हर बार उनको एक किल जरूर मिला, बट उसके बाद उसको जो लीड होता है उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। रेक्सी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वॉल बैंक को, किल निकालेंगे, उस तरफ से हंटर स्प्री आता है, रेक्सी उसको काफी प्यारे तरीके से डॉज करते हैं बट नहीं कर पाएंगे। फ्लेम फाइनली कनेक्ट करते हैं एंड रेक्सी को बाहर का रास्ता दिखाया, बट अभी भी 4v4 का सिनेरियो है एंड अभी तक 4v4 सभी गॉडलाइक कर गए। बट वेलवेट अभी आते हैं यहाँ पर, एम्प्रेस के साथ किल निकाला स्मिक्स के ऊपर एंड अब यहाँ पर रेडी अपनी टीम को पहला राउंड निकालने के देने के लिए। क्या वो चीज़ होगी, लेयर का इस्तेमाल किया गया, फ्लेक्स है आगे साइड साइड में, जी हाँ फ्लेक्स है, बट यहाँ पर अब जिस तरह से हैवान के जो ट्रैप फायर्स हैं वो डिफरेंस मेकर हो सकते हैं। जी नहीं, अभी के लिए जाएंगे अंदर, फ्लेक्स वहाँ पर किल निकालते हैं, फ्लेक्स यहाँ पर दूसरे किल की तरफ भी बढ़ेंगे। ऑपरेटर एंड ओडिन दोनों का जो मिक्सचर है वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिक्सचर्स, एंड वो दिखा क्यों यहाँ पर देखते हैं। हैवान आखिरी किल निकालेंगे अपनी वैंडल के साथ एंड इसके साथ साथ मैच पॉइंट आ चुका है हमारी स्क्रीन। Match point. Oh man, wow, this game started like what, 15 minutes ago or something, 10-15 minutes ago, and we are already on a match point. Godlike Esports, right? I mean, damn, so goddamn good. And WEIRDITY on the other hand, struggling to get even a single round against Godlike Esports. Now I guess SMX is once again gonna try and go ahead and get that entry over to a visible position. But WEIRDITY on the other hand, I guess Dinkar ye acha mauka hoga for them to go ahead and understand as to what exactly happens. And look at this. Raghu on 240 has got 5 kills, whereas SMX with 21 kills. I guess Raghu on 240, right? He's the bottom fragger, and SMX is the top fragger for Godlike Esports. जी हाँ बिल्कुल, एंड यहाँ पर देखिए स्मिक्स रशिंग करने की कोशिश करते हुए, बट यहाँ पर जो वाइपर का वॉल है वो ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिनाई करेगा। बट अभी के लिए स्मैक्स फिर से वहाँ पर जो डब्ल्यू गेमिंग की हम बात करते रशिंग करना स्टार्ट किया। फ्लेक्स ने यहाँ पर पहला किल जरूर निकाला, रघुवन वहाँ पर जरूर अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए स्पेक्टर का इस्तेमाल करके स्मैक्स को कंफर्म किया। हैवान जरूर जाएंगे ट्रैप फायर के लिए, बट फ्लेक्स वहाँ पर फ्लेम को कंफर्म करते 3v4 का सिनेरियो। प्लांट हमें देखने को मिलने वाला है, पोस्ट प्लांट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा WEIRDITY के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर्स की वो पूरी तरह से बिखर चुके हैं एंड वहाँ पर प्लेयर जो थे विक्ट्री प्लेज उनको भी स्पॉट कर लेंगे। तो बियर्डो आखिरी प्लेयर एंड इसी के साथ साथ मैच की समाप्ति, गेम की समाप्ति गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स 30-0 के साथ एक बेहतरीन स्टार्ट करता हुआ, एक डोमिनेटिंग परफॉर्म स्टार्ट करता हुआ। Definitely, what an insane game coming in from Godlike Esports as well. A flawless victory for them, 13-0 against WEIRDITY, and I guess Flex is definitely going to be the MVP for that specific game as well. That is something that I'm predicting as well. But yeah, it was pretty evident that Flex was having a really good time both on the Odin as well as the Vandal as well. But Dinkar, क्या लगता है? WEIRDITY को definitely बुरा लगा होगा, but at the same time उनके लिए बहुत बड़ा एक learning curve होगा कि Godlike ने कैसे अपना सेटअप किया है हेवन पे, एंड how exactly they played it out as well. आई थिंक देखिए जो धक्का जो लगता है आपको, जो जब भी होता है तो जितना पहले हो जाए उतना बढ़िया है। आगे जाके अगर होता तो जरूर उनको बुरा लगता है, बट जितनी शुरुआत में आपको पता चल जाए कि आप आपको कहाँ कहाँ काम करना है, आपको क्या क्या बेटर करना है ताकि आप आगे जा पाए, उतना बेहतरीन रहेगा। अभी बढ़ते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ एंड देखते हैं क्या स्कोर लाइन हमें देखने को मिला है। स्कोरबोर्ड मेरे को इसका बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि पूरी तरह से गॉडलाइक की तरफ से डोमिनेट किया जाएगा एंड उनके सभी प्लेयर्स वहाँ पर हमें टॉप 5 में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैप पे भी पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिला था। बट रघुवन वहाँ पर 6 किल्स के साथ जरूर आगे गए हैं, रेक्सी 7 किल्स के साथ है, बट टॉप फ्रैगर देखिए फ्लेक्स 22 किल्स एंड 4 डेथ्स। असासिन Bapre, look at that. 22 kills, 4 deaths. That KD, it explains absolutely everything. And I guess Flex is definitely going to be very happy with that result, and nobody's going to miss Deathmaker as well, because Deathmaker's shoes have been filled in by Flex. So yeah, I'm just kidding. Deathmaker, I miss you, man. I really miss you. So come back in full power, and I really don't know what was the reason of your absence in this specific match, but whatever it was, hope you're doing fine. Hope you're doing okay. But at the same time, SMX और Flex के बीच में एक competition चल रहा था दिनकर on who exactly is going to be the top fragger, and I guess Flex ने वो position छीन ली है SMX से, and SMX is not going to be happy. SMX is going to be like एक kill के लिए रह गया तू, एक kill के लिए.
जी, आई गेस वो कॉम्पिटिशन था कि डब्ल्यू गेमिंग के जो लीडर हैं वो कौन बनने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दोनों ही शुरुआत से ही पहले राउंड से फ्लेक्स जो थे वो लॉन्ग पे जाके खेल रहे थे, बार बार वो पीक कर रहे थे एंड किल्स निकाल के दे रहे थे, इतने पीक किए फिर भी चार चार डेथ्स हैं। ये दिखाता है कि किस लेवल का डोमिनेशन की तरफ से था। एसएमएक्स ने वहाँ पर ज़रूर तीसरे चौथे राउंड से फ्रैग करना स्टार्ट किया था एंड इस वजह से शायद वहाँ पर 1 पॉइंट का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। वन वो भी 10 किल्स के साथ आए हैं, एक डेथ है उनके ऊपर बट 7 असिस्ट उनके ऊपर थे। विक्ट्री प्लेस की बात करें, वियर्डो फ्लेम निराश होंगे अपने प्रदर्शन से, बट अब ये गेम है, टूर्नामेंट है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, बट एट द सेम टाइम हार को सही से एम्ब्रेस करना एंड फिर कम बैक करना वो एक बड़ी टीम की निशानी होती है। एंड आई होप वीएडीटी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट जब भी उनका गेम होगा, अगर वो क्वालिफायर्स 3 या क्वालिफायर्स 4 खेलते हैं तो वहां पर और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वापस आएंगे। Bilkul, absolutely, and as Dinkar said, right, it's always the process of learning again and again from your mistakes, and I guess Beauty are gonna learn a lot from this specific game. Even though it was 13-0, there's definitely a lot to learn and improve and come back stronger in qualifier number 3, which is going to be happening next month. But yeah, Godlike Esports, once again, congratulations on your first victory. You guys started off with a bang for sure. And yeah, I guess it's really time for us to check out who exactly the MVP is going to be for this specific match as well. क्या लगता है दिनकर कौन होगा MVP? फ्लेक्स की नो एसएमएक्स? क्वेश्चन, फ्लेक्स फ्लेक्स, नो नो क्वेश्चन आस्क्ड। वहां पर There किल्स you ज्यादा थे, go. डेथ्स कम थे, जो जो उनका एवरेज कॉम्बैट स्कोर था वो भी ज्यादा था। तो 22 किल्स 4 डेथ के साथ फ्लेक्स हमारे यहाँ पर क्वालिफाई चुके पहले गेम के एमवीपी बनते हैं। वहां पर एक छोटा सा कंपटीशन जरूर था एसएमएक्स की तरफ से, बट अदर देन दैट नो थ्रेट्स फाउंड फॉर फ्लेक्स एंड एक बेहतरीन गेम उनके लिए, उनकी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत। बट यहाँ पर मैं चाहूंगा गॉडलाइक जो है यही जो शुरुआत है उनकी एक अच्छी एंडिंग में भी तब्दील करे, क्योंकि क्वालिफायर्स होने में भी एक अच्छा स्टार्ट था उनका, बट फाइनल फेजेस में आके वहां पर थोड़ा सा लड़खड़ाए एंड टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता उनको देखना पड़ा था। लेट्स होप कि इस टूर्नामेंट में जिस तरह का स्टार्ट हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड इस टूर्नामेंट को जीत के जो हमारे फाइनल्स होने वाले लैन फाइनल्स उसमें जगह बनाएंगे असासिन। Definitely, man. Definitely, no doubt. Because see, Godlike Esports, they had a tough time in qualifier number 1, and I guess in qualifier number 2, let's hope all of those issues have been fixed, and they've got the time to go ahead and practice it out and have a lot of practice sessions along with the team. Times are still tough, guys. जी Things are still going on across the world and especially in India as well. So I really want you guys to go ahead and stay safe, stay indoors, watch the Esports Premier Series every single day at 6 p.m. and at 5 p.m. as well. The timings are gonna be put up on their socials. So go ahead and follow esports.in on their social media. The link will be down in the description below as well. And also, in the meantime, what you guys can do is go ahead and follow us casters on our Instagram channels. It's on our Instagram pages. It's at the rate official assassin Foods on Instagram for me. It's I am Dinkar for him on Instagram. So go ahead, follow us, and also check out our sponsors, guys. Joe Shap and Hell Energy Drink, because without them this tournament wouldn't have been possible. And I guess जी Godlike Esports ने तो आज बहुत ही ज़्यादा Hell Energy Drink consume कर लिया. That's why they finished off 13-0. So let's see how exactly the second game is going to be, which is going to be interesting because it's going to be Copiers versus Pride Nation Esports. So वो मैच में बढ़ने से पहले we're gonna take a short break. We're gonna get ourselves energized with Hell Energy Drink and gonna swipe some content on the Joe App as well. You guys can do so as well. Check out the link down in the description below and do the necessary. So we're gonna throw it to a quick break. See you guys really soon. Don't go anywhere. Stay tuned. आज खाने में वही बिल्कुल सही। खाने में वही बिल्कुल नहीं, आज बोरिंग नहीं। फासोस सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वाटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासोस सिग्नेचर रैप्स। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trends. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell Energy. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।
ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस, मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। आज खाने में वही, बिल्कुल सही। खाने में वही, बिल्कुल नहीं, आज बोरिंग नहीं। फासोस सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वाटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। पासोस सिग्नेचर रैप्स। Alright guys, welcome back to Esportz Premier Series powered by Hell Energy Drink and Josh app. वेलकम बैक टू द सेकंड गेम ऑफ द डे एंड यहाँ पर हमारा दूसरा गेम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। पहले गेम में क्लीन स्वीप देखने को मिला गॉडलाइक स्पोर्ट्स की तरफ से, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई उनको हेवन पे वो जीतने के लिए। अब हम दूसरे गेम की तरफ बढ़ने वाले हैं जहाँ पर कॉपियर्स वर्सेस प्राइड नेशन होगा। प्राइड नेशन के जो पलड़ा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भारी है, क्योंकि पिछला जो क्वालिफायर्स बन हुए थे वहाँ पर राउंड ऑफ 16 तक उन्होंने जगह बनाई थी, तो शायद यहाँ पर भी उसी जो गेम प्ले है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड और आगे जाने की कोशिश होगी असासिन उनकी तरफ से। Definitely, I guess Pride Nation Esports, they're going to try and, maybe make their way in towards round of 8 as well, or maybe eventually in towards the semi-finals. So, Pride Nation का वो redemption stage होगा qualifier number 2 में. अगर वो इस बार भी नहीं कर पाए तो no worries, no need to get disheartened. Qualifier number 3 or 4 भी है. So, it's never the end of the world unless and until it's qualifier number 4. So, so qualifier number 4 में अगर आप नहीं कर पाए तो unfortunately I'm really sorry to say you won't be able to qualify, but yeah, qualifier number 4 tak, you've got a lot of chances, so keep improving yourself, keep grinding, and go ahead and give out your best, man, because in the end that's what esports.in are trying to do as well, to take it to the grassroots level and bring out the talent from the ground level as well. So I guess the game is ready as well. I just got the cue from the production as well, so we can straight away jump straight into the game in about a minute or so. But think क्या लगता है कॉपियर्स वर्सेस प्राइड नेशन esports? प्राइड नेशन esports का लाइनअप में भी थोड़ा चेंज है ऐसा मैंने सुना, सो मेरे को लगता है कि प्राइड नेशन esports में put up a really good performance, but at the same time मेरे को कोई आइडिया नहीं है कॉपियर्स का लाइनअप क्या है, कॉपियर्स कैसे खेलेगी, and they're a newer team in the tournament, so do you have any idea about कॉपियर्स? जी नहीं, अभी तक मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले मैच में भी बताया था कि मुझे हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है जब भी मैं अंडरडॉग टीम्स को देखता हूँ, क्योंकि शुरुआत में सभी लोग अंडरडॉग्स ही होते हैं एंड एक जब भी आप देखते हैं तो एक सरप्राइज एलिमेंट जो रहता है वो हमेशा रहता है। मैच की तरफ बढ़ने वाले हैं, वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या लेने वाला है, कौन सी लाइनअप किसके साथ आएगी एंड किस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक ये वाला मैच थोड़ा और बैलेंस होने वाला है सासिन, जो पहला मैच था उससे थोड़ा सा विपरीत जाएगा एंड हमें एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा इसमें। Let's hope the same, because see, Pride Nation Esports, they are no joke, and I guess Copiers, considering the fact that we don't have any prior information about them, let's hope that they are gonna put up an equal performance as well against Pride Nation Esports. But yeah, Pride Nation Esports, मेरे को लगता है कि उन लोग का agent lineup भी थोड़ा interesting होगा दिनकर, because the last time I saw them, they had a pretty default setup. Sometimes they used to throw in the spanner in the works of the opposite team, but yeah, maybe Copiers का lineup देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा idea आएगा as to what exactly is gonna happen. हमको मैप वीटो के भी बारे में इतना ज़्यादा information नहीं मिला है, तो कौन सा मैप होगा and उसके हिसाब से जो agents बाहर आएंगे वो सब के लिए हम wait कर रहे हैं, we are waiting. So yeah, let's wait for that specific cue as well. I know just got to know that the map is going to be ascent, so yeah, that is really interesting. So ascent में आपको क्या लगता है? What do you think is the lineup that most of the teams like to go for?
देखिए किलजॉय हमें देखने को मिल सकता है वहाँ पर, रेज, जेट ये डिफ़ॉल्ट पिक्स हो जाते हैं एंड साथ-साथ में एक सोवा भी कभी-कभी देखने को मिलता है एंड सेज काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम कुछ टीम्स होती है जो कि मिड वॉल को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है, तो वो चीज़ वहाँ पर हो सकती है। अब अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन रीजन्स में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रा देखने को मिला है एशियंट में एंड बहुत सारे लाइनअप्स हैं जिनको एस्ट्रा एंड केजे को मिक्स किया जाता है, एस्ट्रा एंड फिनिक्स को मिक्स किया जाता है, एस्ट्रा एंड रेज को मिक्स करके काफ़ी सारी नई चीज़ें उन्होंने बनाई है एंड जो हमारी मैं देखता हूँ जो नई टीम्स हैं, हमारी जो अंडरडॉग टीम्स हैं, वो काफ़ी कुछ उनसे सीखती हैं। तो मैं एस्ट्रा को यहाँ पर देख के काफ़ी खुशी हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने देखा हुआ है इंडियन सिनेरियो में भी एस्ट्रा एशियन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर वो होता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, इसका मतलब है टीम्स ने काफ़ी रिसर्च की है, टीम्स ने काफ़ी मेहनत की है एंड एस्ट्रा को मास्टर करके यहाँ पर लेके आए हैं अपने ऑपोजिशन को सरप्राइज करने के लिए। तो वो मुझ में एक उम्मीद है कि जो टीम वहाँ पर एक्स्ट्रा के लिए जाती है, मेरा इंक्लिनेशन तो उनकी तरफ पूरी तरह से जाने वाला सासिन। बाकी अगर बात करें डिफ़ॉल्ट लाइनअप्स देखने को भी मिल सकती है क्योंकि टीम्स जो है रिसेंट कभी-कभी होता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है बड़े टूर्नामेंट्स में जाके। जब उनके पास कोई बड़ा मौका मिलता है, कभी-कभी मिलता है मौका बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का एंड ई-स्पोर्ट्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर कि उन्होंने उन टीम्स को मौका दिया है। बट एनीवेज़ चलते हैं अभी के लिए ड्राफ्ट की तरफ एंड देखते हैं क्या पिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इन टीम्स की तरफ से, क्या डिफ़ॉल्ट लाइनअप देखने को मिलेगा या फिर कुछ नया सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। All right. So the thing is that I guess the way that you put it as well about Astra and everyone, right? We're definitely going to be seeing that getting into the play as well. So let's quickly take a look at the agent lineup coming in from both of these teams, and then we can forward this specific conversation into the match. So for now, Copiers they're gonna go ahead and lock in Sova as well as Reina. I guess Toxic Bullet is looking to go ahead and pick up the Breach as well. So yeah, there you go. The Breach lock-in is going to come in. Skyhawk, Yoru pick karenge, and I guess it's really interesting to see no Jet, no Raze on the side of Copiers as well. That might come to bite them in the butt as well. But let's see how exactly that works out. And wow, Skyhawk, you're really going to be going in for that Astra though. Because if you are, then I guess the decision of going in for the Viper might not have been the best. But at the same time, we do see EU and a region, as Dinkar said, trying out new compositions, and they've already brought in the single duelist meta. So maybe Copiers are trying to do something like that, a dual controller meta and a single duelist meta as well. Yeah, Pride Nation Esports on the other hand, they're going to be going in for Omen, Jet, Killjoy, Sova, and Phoenix. So yeah, Pride Nation Esports going in for that default lineup. So I'm really excited to see what Pride Nation Esports are going to do. I guess Pingu on that Omen is definitely going to show us something interesting. Earlier, Pride Nation Esports में Mac भी थे, who has recently made his shift on towards I guess direct घर पे or one of the two. I guess beyond DGP. Okay, he made his way into DGP. I guess I'm not sure, but yeah. That specific change has definitely come in, so we're going to see a newer Sova on the side of Team Pride Nation Esports. So looking forward to an exciting one then, Kar. जी हाँ, एंड मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि जो ब्रीच का पिक है वो किस तरह से अपने एजेंट के साथ जस्टिस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं समझता हूँ कि शायद वो बीपीए में खेलते हुए ज़्यादा नजर आएंगे, बट एट द सेम टाइम ब्रीच को अभी मैं जब नॉर्थ अमेरिकन रीजन के मैचेस देख रहा था वहाँ पर मिड में बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लॉन्ग फ्लैशेस थे वो दे रहे थे, बट एट द सेम टाइम उसका फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर जेट थे जो कि नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो शायद ब्रीच जो है वो ज़्यादातर बी पे खेलते हुए नजर आएंगे, वो नहीं जाने वाले मिड की तरफ। बट एनीवेज कुछ हो भी सकता है, क्या पता इन्होंने कुछ नया बनाया हो, क्या पता कुछ नई रिसर्च की हो। एनीवेज देखना होगा यहाँ पर जो वन डुएलिस्ट के साथ आए हैं वो किस तरीके से काम करता है। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ शायद क्योंकि डिफेंडर्स पे स्टार्ट करे इसलिए वो जो पिक है इनका एक डुएलिस्ट का वो इसका इन्फ्लुएंस जरूर किया है। एनीवेज यहाँ पर मार्केट पुश था, उनसे वहाँ पर एक बेहतरीन किल निकाला इसका इस्तेमाल करके पीछे की तरफ जरूर गए थे, बट जो पूरी टीम थी यहाँ पर प्राइड नेशन की उन्होंने उनको पूरा चेस डाउन किया, आखिर तक किल निकाल लिए। एंड अब यहाँ पर एक आसान प्लांट हमें देखने को मिल सकता है उनकी तरफ से। जो दोनों प्लेयर्स हैं वो अभी भी मिड की तरफ से रोटेट करके आ रहे हैं, मुश्किल यहाँ पर बढ़ सकती है एंड बड़ी भी है। राम प्रसाद वहाँ पर एक किल निकालते हैं, पिंगू के ऊपर 2v2 का सिचुएशन हो चुका है। एक प्लेयर यहाँ पर मार्केट से आएंगे, दूसरे प्लेयर जो है वो सिटी स्पॉन की तरफ से आने वाले, तो दो अलग अलग एंगल जरूर है यहाँ पर, बट मैं चाहूंगा जो दोनों पीक्स हैं वो सेम टाइम पर है, उसका फायदा उठा के शायद यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है एक अच्छा रीटेक। दोनों ही प्लेयर्स अभी के लिए बोट हाउस में रिकॉन डार्ट एंड आउटड्रोन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। वॉल बैंक क्या बेहतरीन किया यहाँ पर डेमिन ने। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, जो यूटिलिटी यूसेज है, जो टीम वर्क है, वो प्राइड नेशन की तरफ से बेहतरीन नजर आया एंड इसी का फायदा उठा के उन्होंने टॉप 6 में जगह बनाई थी। शॉक डार्ट से दोनों ही प्लेयर बाहर। राम प्रसाद गेम को प्राइड नेशन के चंगुल से यहाँ पर खींच के ले गए हैं, बचा के ले गए। कॉपियर्स को
एक ऐसा राउंड जो कि लग नहीं रहा था कॉपीज में जाएगा, उन्होंने यहाँ पर लाके दे दिया। Wow, man, I'm absolutely speechless because Ram Prasad, the way he went ahead and got himself that double as well using one single shock dart, it goes on to show his absolute grip on the Sova as well, and the entire lineup coming in from Ram Prasad as well, right? It was really good. The entire round panned out into his favor really well. 3 kills, and he goes ahead and you know gets himself that double as well with the shock dart. So Ram Prasad की तरफ से बेहतरीन शुरुआत. Copiers are going to be very happy with that hold over towards the B side, but at the same time, can't really forget the fact that it came down to a 1 versus 2 then कर. So Pride Nation Esports, उन लोग को W gaming थोड़ा कम करना पड़ेगा, and once again they're going in for that specific mid push. And this time around though, Ohms is going to be the exact same player to get that opening big on towards NB. एंड इस बार ऐसा लग रहा है राम प्रसाद को पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ब्लाइंड किया, बेहतरीन ब्लाइंड था, एंड ये जो ब्लाइंड था ये इनको थोड़ा सा 2-3 सेकंड का टाइम देने वाला है कंट्रोल लेने के लिए, एंड वो कंट्रोल मिल भी चुका है। बट एयरहेड वहाँ पर टॉक्सिक बुलेट के ऊपर कंफर्मेशन निकालेंगे। स्काईहॉक वहाँ पर जरूर आए थे, बट डेमिन उनका इंस्टेंटली ट्रेड आउट निकाल लेंगे 3v2 का सिनेरियो। बट एक चीज जो प्राइड नेशन के अगेंस्ट है वो है उनके हेल्थ पॉइंट। देखिए कितने ज्यादा कम हेल्थ पॉइंट्स पे है सोवा एंड फिनिक्स, बट स्टिल सोवा को उसी से फर्क नहीं पड़ने वाला, वो किल निकालेंगे। एक अच्छा प्लान, एक अच्छा वहाँ पर किल्स का जो जो दारोमदार एयरहेड ने अपने माथे पर लिया था उसके साथ पूरा जस्टिस किया। 3 किल्स उन्होंने निकाले, एंड देखिए असासिन दोनों तरफ से सोवा जो है वो भी के लिए बेहतरीन फ्रैग आउट करे। सबसे पहले राम प्रसाद पहले राउंड में, एंड इस राउंड में एयरहेड अपनी टीम को राउंड ला के देते हैं। 1-1 हो चुका है। जो नॉर्मल सिनेरियो रहता है, नॉर्मल फ्लो रहता है कि जो टीम पहला राउंड लेके जाती है सेकंड राउंड में बाय लेके वही दूसरा राउंड लेके जाता है, उसके अगेंस्ट जाके यहाँ पर अगेंस्ट द फ्लो 1-1 लेके आए प्राइड नेशन। बट आप बात कर रहे थे पहले राउंड की, वहां पर भी आई गेस वो एक शॉक डार्ट था जो कि डिफरेंस मेकर था, नहीं तो वो राउंड भी प्राइड नेशन के खाते में जा सकता था। सचिन Absolutely true. I guess Pride Nation Esports, right? They keep on exploiting this specific mid hold coming in from the side of Copiers, and Pasha Bhai, he's moving it over to his E shot, and I guess it's not going to be a good idea for him to push to that toxic smoke as well, to the toxic wall. I guess Ram Prasad, considering the fact that Copiers have got an eco going on for them, maybe they're just gonna try and get information. But at the same time, Pride Nation, they're not gonna stop with the push. And Pasha Bhai was gonna have a beautiful flash. He's gonna 2 more kills, a total of 3 kills for Pasha Bhai, and I guess he's gonna try and go into the 1 enemy remaining. No, never mind. It's gonna be enemy. Go ahead and seal that one. And Fingo is gonna finish it off with the final kill on towards toxic bullets. Second out of the both for Pride Nation, I guess Copiers. उनका full buy आने वाला है ये round पे, and it's gonna be a better buy than Pride Nation for sure. जी एंड इस बार जो गन्स का अंतर था वो साफ नजर आया, जिस तरह से वहाँ पर ए हेवन पे फिनिक्स ने डेसिमेट किया दोनों ही प्लेयर्स को, बाहर का रास्ता दिखाया, एंड उसके बाद अब यहाँ पर प्राइड नेशन एक और राउंड लेके गया 2-1 का सिनेरियो। बट प्राइड नेशन की तरफ से मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है, मिड से जाते हैं, एक प्लेयर को कंफर्म करते हैं, एंड उसके बाद जैसे ही नंबर्स का एडवांटेज उनको मिलता है डिले नहीं करते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि अगर वो डिले करेंगे तो रोटेशन आसान हो जाएगा डिफेंडर्स के लिए, एंड जो नंबर्स एडवांटेज उन्होंने गेन किया है वो किसी भी समय पे खोते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए बेहतरीन के लिए एक अच्छा रिकॉन डार्ट इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा, आउटरूट जरूर है वो 2 यहाँ पर शार्प एंगल जो उसको जरूर क्लियर करेंगे। बट एट द सेम टाइम पाशा भाई यहाँ पर अल्टीमेट लगा के आ चुके हैं, रेड बैक का उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा उनको ज्यादा नहीं मिलेगा। एनपी किल निकालते हैं राम प्रसाद फिर से यहाँ पर एक्शन को ज्वाइन करते हुए वैंडल का इस्तेमाल करके उन्होंने 2 किल निकाले, बट सिनेरियो अभी भी 3v3 का है। हॉट हैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, एयरहेड वहां पर कंफर्मेशन निकालेंगे राम प्रसाद के ऊपर, एंड इसी के साथ साथ कॉपियर्स का जो डिफेंस है उसको पूरी तरह से ब्रीच कर लिया गया है। अभी बात करें हम कॉपियर्स के ब्रीच की, वो जरूर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी यूटिलिटीज का इस्तेमाल करके, फॉर्टलाइन का इस्तेमाल करके, फ्लैशेस का इस्तेमाल करके कुछ अपनी टीम के लिए करें, बट अभी तक ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। पाशा भाई एक और कंफर्मेशन निकालेंगे, 3v1 का सिनेरियो, पाशा भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हुए, फ्लैश उनका पूरी तरह से रेडी है, प्लेयर वहां पर ट्री पीक करते हुए किसी भी समय पे नजर आ सकते हैं। टर्रेट उनकी तरफ से जरूर निकाला गया था, बट वो ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इंसिडेंट डिस्ट्रॉय किया गया, एंड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एयरहेड उनको वॉल बैंक करेंगे, कंफर्म करेंगे, एंड प्राइड नेशन एक और राउंड ले गया 3-1। एक जो राउंड कॉपीज के पास गया था वो था राम के साथ की ब्रिलियंस की वजह से, बट प्राइड नेशन उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। असासिन 3-1 का स्कोर लाइन हमें नजर आ रहा है। That they're putting up as well, and I guess there was a little bit of a network lag over there, but I guess it's fine now, so we are all back. But yeah, Pride Nation Esports, right guys, to be honest, they have gone through a series of roster shuffles as well, and I guess the entire roster shuffle hasn't affected them a bit.
they have put up the work, and I guess there's no looking back for them from here on out. Pride Nation Esports, they're looking really solid. And I guess Copiers, they definitely are going to have a challenge holding on towards both of these sides against Pride Nation Esports. जी हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पर देखिए फिर से जो मिड कंट्रोल है वो यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। पाशा भाई इस बार कंफर्मेशन निकालने के लिए जाएंगे। उन्होंने पिछले राउंड में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जो 2 किल्स उन्होंने निकाले थे, वही इस बार रिक्रिएट करने की कोशिश करते हुए टॉक्सिक बुलेट को वापस भेजा। ब्रीच की ड्यूटीज पूरी तरह से यहाँ पर बाहर जा चुकी है। एंड मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, ब्रीच का जो पिक है अगर आप उसको जेट के साथ कंबाइन करते हैं तभी वो एक अच्छा पिक होता है एशियन पे स्पेसिफिकली। बट यहाँ पर बिना जेट के बार बार उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एनवी पूरी तरह से रेडी है, साइड का कंट्रोल मिल चुका है। एंड यहाँ से फिर से ए रीटेक असासिन वन ऑफ द टफेस्ट रीटेक मैं कहूँगा। इवन इफ उनके पास सोवा है, इवन इफ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर की जाएगी, शॉक डार्ट्स की बरसात की जाएगी, बट स्टिल रीटेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस तरह से इवन पे एक प्लेयर ऑलरेडी मौजूद है एंड एंगल चेक नहीं किया गया, एनवी मेक श्योर करेंगे कि इसका खामियाजा जो है कॉपियर्स की टीम वो भरेगी। 2 किल्स उन्होंने निकाले, तीसरे किल के लिए बढ़ते हुए स्वॉर्म ग्रेनेड का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत डैमेज उनको जरूर दिया गया, बट वो मैटर नहीं करने वाला है। एयर हेड वहाँ पर एक किल निकालते हुए 5v1 का सिनेरियो है। फ्लॉलेस की तरफ जरूर बढ़ रहे थे, स्काई हॉक ने वहाँ पर एक किल निकाला। एट द सेम टाइम पाशा भाई इनको इंस्टेंटली टेर आउट करेंगे। 4-1 यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। एंड प्राइड नेशन इवन इफ एक डिफेंडर्स फेवर्ड मैप है, बट स्टिल प्राइड नेशन को देखिए अटैकिंग पे यहाँ पर अच्छी खासी 3 पॉइंट की लीड ले चुके हैं। इसी तरह से अगर चलते रहे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्राइड नेशन मैच जीत के जा सकती है। असासिन Pride Nation के लिए एक easy win लग तो रहा है, but at the same time I'm not gonna give up on Copiers because Copiers, they definitely showed us a really good pistol round. So maybe they just have to strengthen up their defense a little bit right now. And Pride Nation Esports, they're also very very unreadable, right? Pride Nation Esports, they have constantly been switching their strats, and I guess the way they have been moving over towards the A side and the B side consecutively, Pride Nation Esports, their map control looks a lot better than Copiers. Copiers, on the other hand, they definitely have Ohms this round pushing up, but you can't see this every single round coming in from them, right? This being an eco round, Copiers are trying out whatever they can, but when it comes to a buy round, right, वो freedom of movement दिख नहीं रहा है Copiers की तरफ से, and I guess that is something that is putting them a little bit back as well. But look at Ram Prasad once again, putting up the work for the team. It really goes on to show that Ram Prasad and Ohms are really making a difference for Copiers. हाँ बिल्कुल। एंड साथ साथ में अगर मैं बात करूँ शिफ्ट ऑफ मोमेंटम की, अगर कुछ भी यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट करना है, कॉपीज को वापसी करनी है, तो उनके जो अल्टीमेट्स हैं जो आएंगे उनका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स तो अभी के लिए मुझे प्राइड नेशन के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कमबैक आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। फिर से यहाँ पर ए जो साइट है वो पूरी तरह से कंट्रोल में ले ली गई है प्राइड नेशन की तरफ से। एंड अल्टीमेट जो था कैंसिल आउट जरूर किया गया है, उनको स्पॉट किया गया। नॉर्मली हम देखेंगे सीटी स्पॉन में ही जो है अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाता है वुमेन की तरफ से। अभी के लिए फिर से रेडी है अपने फ्लैशेस के साथ, फ्लैशेस की बरसात जरूर होती है, बट साथ साथ में देखिए पुश नहीं करने दे रहे। ये बेहतरीन चीज़ की गई है यहाँ पर। अगर हम बात करें प्राइड नेशन की सोवा की तरफ से, उनको पता था फ्लैश हुआ है, ब्रीच पुश करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर शॉट का इस्तेमाल किया, उनको पीछे भेजा। साथ साथ में उनकी हेल्थ देखिए कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब ब्रीच कतराएंगे थोड़ा सा अंदर जाने में, साइड को रिटेक करने के लिए। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर एक और राउंड जाता हुआ नजर आता है। पिंगू वहाँ पर जरूर वो जो आखिरी उम्मीद थी उसको भी यहाँ पर निकाल देंगे इस मैच से। 3-1 का सिनेरियो कॉपियर्स यहाँ पर, जी हाँ, आखिरी प्लेयर को वापस भेजा गया। पिंगू एक 4K के साथ इस गेम को, इस राउंड को एक्चुअली एंड करेंगे 5-1। बट यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, अब देखिए जो 2 अल्टीमेट्स हैं, अगर हम बात करें कॉपियर्स की, तो बैडास के पास अपना अल्टीमेट रेडी है। तो अगर यहाँ पर एक बी पुश होता है या फिर कहीं भी पुश होता है तो बैडास वो स्पेस कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे अपने अल्टीमेट के साथ। पर एट द सेम टाइम 24 ओम्स का भी जो एम्प्रेस है वो रेडी है। तो क्लच करने की सिचुएशन अगर आती है तो वो उनकी तरफ से पॉप इन होता हुआ नजर आ सकता है। एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है अभी के लिए कॉपियर्स को, क्योंकि अभी अगर वापसी नहीं की तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी असासिन। Yeah, definitely. A little bit of shift in momentum is required from the side of Copiers. I guess Copiers, what they can try is go in for an aggressive stance as well, rather than the passive stance that they've been trying from quite some time. And Pride Nation Esports are getting a lot of information, and on top of that information, they are making that push as well. And that is what's important. Copiers, on the other hand, I've got no idea. Now that Ohms knows that a couple of players have been spotted over towards the A-sharp position, Toxic Bullet is going to try and move into the target. But at the same time, he's going to try and play inside that smoke, and that's the correct play to make as well. Pingu is going to try and neutralize that advantage, and we're going to see better coming in from Pride Nation Esports as a team, and is going to get that frag as well on towards the SOA. And I guess Copiers are going to be left out of the 3 versus 4 situation. The ult is going to be popped in. The ult coming in from the creators is not going to affect any of the players from Pride Nation Esports, as they're all going to be outside of the site.
And that is exactly what you should do if your opponent breach has his ult ready in the retake situation. Because trust me, guys, 9 out of 10 times the breach is gonna is gonna use his rolling thunder when it comes to a retake situation. He's gonna save it up unless and until they have the man advantage or they're feeling adventurous, to make those aggressive plays. So keep in mind if you guys are playing even your normal rank games. When your breach, right? When your breach on the opponent side has his ult ready, always try and position yourself outside the side. Else you're gonna get caught inside of that rolling thunder. जी हाँ, एंड इस बार अगर बात करें इवन इफ यूटिलिटी यूसेज था अल्टीमेट आया, बट अगर आप अपने डुअल्स नहीं जीत रहे हैं, अगर आप अपने फाइट्स नहीं जीत रहे हैं, तो आपकी टीम नहीं जीत सकती है। एंड इस बार वही चीज़ हमें देखने को मिली। अभी के लिए स्काई ऑफ का जो पोजीशन है वो पूरी तरह से रिवील किया गया है, रेड को डिस्ट्रॉय किया गया, हॉट एंड का इस्तेमाल करके जो भी वहाँ पर मार्केट का रीजन था उसको ब्लॉक किया जाएगा, एंड जो पुश था उसको डिले किया गया। काफी बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रैटेजी प्राइड नेशन की तरफ से देखने को मिली है। सीटी कंट्रोल उनके पास आ चुका है। राम प्रसाद आई गेस यहाँ पर उनको दिक्कत होने वाली है। पाशा भाई का एंगल वहाँ पर बिल्कुल था, वाइड पीक के लिए गए थे पाशा भाई, बट स्टिल राम प्रसाद अपना शॉट है वो लैंड करेंगे। राम प्रसाद वन ऑफ दोस प्लेयर्स हैं जो कि अपने डुअल्स नहीं हार रहे हैं एंड अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पे लाके जरूर खड़ा करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो उस लेवल पे फ्रैग आउट नहीं कर पा रहे हैं। प्राइड नेशन फिर से वहां पर बेहतरीन फ्रैग आउट करते हुए एक और राउंड निकाल के गए। देखिए प्राइड नेशन अगेन जो हम बात करते हैं ट्रेड गेम की, वो कॉपियर्स के खाते में कभी नहीं गया। इवन इफ वो अगर पहला किल निकाल लेते हैं, स्टिल जो प्राइड नेशन के सभी प्लेयर्स हैं उनके पास क्षमता है अपने डुअल जीतने की, एंड वहां से नंबर्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। वहां से कॉपियर्स थोड़ा सा अपने आप को हताश महसूस करना शुरू कर देता है, एंड आई थिंक वो डिफरेंस मेकर अभी तक रहा है। 6 राउंड अभी तक प्राइड नेशन के खाते में गए। एक टैक्टिकल टाइम आउट लिया गया एंड मेरे हिसाब से सही समय है असासी टैक्टिकल टाइम आउट लेने का, क्योंकि 6 राउंड का लीड जा चुका है एंड अभी एक राउंड बढ़ेगा अगर प्राइड नेशन के खाते में, वहां से जो हार है वो कॉपियर्स के नजदीक जाती जाएगी। True that, and at the same time, I guess copiers what they can try and do is play and stick together a little bit, because मैं देख रहा हूँ कि trade potential बिल्कुल भी नहीं है copiers की तरफ से। If you notice, Skyhawk went down. There was absolutely no trade potential coming in from the side of copiers and Pride Nation Esports. If you notice, they always have like a duo making their way in towards the side. Even like if not the entire team, there's always a duo sticking together. In order to make sure that the trade is always on point and incoming from their side. So the man advantage immediately gets neutralized from the side of Pride Nation Esports, but at the same time, copiers, if they try and get a pick, right, there's absolutely no trade potential whatsoever. उनकी तरफ से कोई भी sort of resistance नहीं है side पे, and I guess Pride Nation Esports, they sort of have read out the entire setup coming in from the Killjoy over towards the B side as well. So yeah, Pride Nation Esports, their read game is working a lot better, whereas Copiers, I guess, it's definitely going to take some time for them. I mean, Pride Nation Esports और Copiers के बीच में वो skill difference भी रहेगा ना, तो मेरे को लगता है कि Pride Nation Esports are definitely gonna have that upper advantage for sure. जी एंड अगर हम उन अगर हम स्किल सेट छोड़ दें, अगर हम स्ट्रैटेजी छोड़ दें, स्टिल अगर हम वहाँ जाते हैं स्कोरबोर्ड पे आपने अगर नज़र डाली हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर 8 किल्स थे राम प्रसाद के पास। अदर देन हिम जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो 3 किल्स 2 किल्स 1 किल्स पे हैं, तो ये दिखाता है कि वो अपने डुअल्स नहीं जीत पा रहे हैं। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, आप कितना भी बेहतरीन खेलें, आप कितने भी अच्छे शॉक डार्ट्स मार लें, आप कितने भी अच्छे आफ्टर शॉक मार लें, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ यूटिलिटी से आप गेम नहीं जीत सकते हैं। तो वो मुझे वहाँ पर डिफरेंस मेकर दिखा। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें प्राइड नेशन की, उनकी तरफ से जो वहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट रहा है बहुत बेहतरीन रहा है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ एक प्लेयर पूरे वहाँ पर किल्स निकाल रहे हैं, सिर्फ एक प्लेयर कैरी कर रहे हैं, वो रशिंग कर रहे हैं एंड वही किल्स निकाल रहे हैं, फिर बाकी की टीम उस पर फीड कर रही है, ऐसा नहीं है। सभी प्लेयर्स जाते हैं, तो जैसे कि आपने कहा 2 प्लेयर वहाँ पर रशिंग करते हुए दिखेंगे, बाकी के 2 प्लेयर्स एंगल चेक कर रहे होते हैं। अगर वी पुश हो रहा है तो 2 प्लेयर्स अगर पहुंच गए साइड पे तो एक प्लेयर आपको मार्केट स्टॉप करता हुआ दिखेगा, दूसरा प्लेयर सिटी स्टॉप करता हुआ दिखेगा, तो एंट्री ही नहीं करने देते, चाहे बी हो चाहे ए हो। तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी अभी तक प्राइड नेशन की तरफ से देखने को मिली है। मैं जरूर चाहता था कि इस मैच में एक अच्छा हमें एक गेम प्ले देखने को मिले, एक बैलेंस गेम प्ले देखने को मिले, बट एट द सेम टाइम अभी तो मेरे हिसाब से प्राइड नेशन की आंधी चल रही है एंड उसको रोकना अभी तक कॉपियर्स के बस की बात नहीं रही है। बट अगेन जो एक छोटा सा टाइम आउट कभी भी आता है, असासिन ने काफी बार देखा हुआ है, वो गेम का सिनेरियो चेंज कर देता है, वो गेम का फ्लो चेंज कर देता है। तो क्या ये टाइम आउट वो टाइम आउट होगा जिसकी हमें भी जरूरत है, चैट को भी जरूरत है, क्योंकि चैट में मैं देख रहा हूँ काफी सारे सपोर्टर्स आए हुए हैं, प्राइड नेशन के सपोर्टर्स आए हुए हैं, देन वी हैव कॉपियर्स की सपोर्टर्स एज वेल। तो वो पूरी तरह से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं एंड हम भी चाहेंगे कि एक अच्छा गेम देखने को मिले। एक ओवर टाइम मिल जाता तो और अच्छा रहता, बट अभी उसकी जो आशंका है काफी कम लग रही है।
Yeah, because see, Pride Nation Esports, they've got that momentum rolling on in their favor as well. Now, the timeout is definitely going to help out Copiers in order to, cripple down the momentum coming in from the side of Team Pride Nation Esports. But at the same time, if Pride Nation Esports are not going to be able to, are not going to be able to strategize on top of that, then it's definitely going to be trouble for them. Now, I am expecting Copiers to try and strategize their moves from here on out, because it's going to be very important against Pride Nation Esports. And Pride Nation Esports, if not stopped now, then I don't think so they're going to be stopped anytime soon. Pride Nation Esports का ये momentum अगर चलता रहा तो फिर I guess Copiers it's going to be very difficult for them. And see, just not the duels, right? The utility usage as well coming in from the Sarah Copiers is not on point. We're seeing all of these initiators and the recon gathering agents as well, right? The intel gathering agents are not able to do their job properly, and even if they get the intel, their duelists are not able to frag on top of that specific intel as well. So it's very important, guys, to make these combo plays, right? That is the name of the game as well, especially in Valorant. Not only in Valorant, whether it be any kind of FPS game as well. If you get that information in, you should be able to capitalize that specific information and get an advantage on top of that as well. So if you know that there is some player coming in over towards the B mains or something like that, just ask your duelist to go ahead and try and maybe get that duel against them, become that element of surprise, because they might not expect you to push in as well. But at the same time, if you have that intel, then it's definitely going to help you out. And if you have that man advantage secured right off the bat in that specific round, what you have to do is fall back and not neutralize that man advantage. But if you neutralize that man advantage, then it's over for you. Fall back to safety and get some heals if you guys have got a healer in your team, or maybe just try and play on the back foot a little bit, and just keep on with that man advantage, because that man advantage is going to in turn help you out as well. Because in the end, numbers advantage, right? It is definitely the name of the game, and if you have got that for your team, then maybe everything goes on into your favor really, really well. Now, Copiers, I guess, Dinkar are definitely missing that specific point as well, and I guess they should try and go ahead and get that information, and on top of that, try and secure some kills, because at this point they're definitely losing out their duels. Not only they're losing their duels, but they're finding themselves in bad positions as well. Their repositioning isn't that great. So समझ लो कि किसी ने किसी को spot out कर लिया A shot की तरफ से. Now the next position that you take is very, very crucial. Whether it be over towards the T rooms, whether it be over towards the A shot position, or even over towards the site, right? You should reposition yourself in such a way that you're going to be walking away with at least one kill. If you're not going to be able to do that, if you find yourself in bad positions and the pre-fire comes in from the opponents, then you're doomed. So I guess that is something that Copiers can go ahead and work on as well. But yeah, we're definitely waiting for the teams to get ready, and once they're ready, and we're gonna jump straight into the game as well. We just got an update that the game is gonna start in a minute. So yeah, Dinkar, what do you think can Copiers work on as well, if you were in those shoes? आई थिंक देखिए जो मिड कंट्रोल रहा है जो उन्होंने अभी तक दे दिया है, मैं कहूँगा पूरी तरह से प्राइड नेशन को, वो बहुत ज़्यादा उनको हर्ट कर रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट एंगल्स प्रोवाइड करता है. एंड एट द सेम टाइम अगर हम प्राइड नेशन की बात करें, वो ऐसा नहीं है कि दे आर स्टिकिंग टू द सेम स्ट्रैटेजी. कभी कभी आप देखेंगे शुरुआती जो राउंड थे वहाँ पर पूरी तरह से गए थे मिड कंट्रोल के लिए, बट आफ्टर दैट पूरा जो उनकी तरफ से ए पुश था और बी पुश था वो देखने को मिला. तो अभी के लिए कॉपियर्स रीड नहीं कर पा रहे कि क्या देखने को मिल रहा है. एट द सेम टाइम जो रीटेक पे खेलने की स्ट्रैटेजी रही है अभी तक कॉपियर्स की तरफ से, वो काम नहीं किया. इवन उसके बाद भी वो रीटेक पे खेलते हुए नजर आए. पहले 5 राउंड थे वहां पर रीटेक के लिए काम नहीं किया, बट स्टिल छठे और 7वें राउंड में मुझे वो चीज़ करते हुए नजर आया फॉर सम रीजन. तो मैं चाहूंगा यहाँ पर साइड कंट्रोल के लिए जाए, स्पेस कंट्रोल के लिए जाए, अलाउ ना किया जाए वहां पर. थोड़ा सा अगर आपका डिफेंस काम नहीं कर रहा है तो ट्राई टू बी अ लिटिल मोर अग्रेसिव. जो चोक पॉइंट्स है, जो एंट्री पॉइंट्स है, वहां पर जाइए एंड वहां कोशिश करिए, क्योंकि अगर साइड चला गया तो वैसे भी आप नहीं जीत पा रहे हैं. जो एक राउंड वो जीते थे वो वहां पर शॉक डार्ट की बदौलत जीते, क्योंकि दोनों प्लेयर्स एक ही एंगल पे थे एंड वहां पर उनको शॉक डार्ट कनेक्ट हो गया, तो वो 2v1 सिचुएशन था, तो वो भी उनके अगेंस्ट जा सकता था. वो एक राउंड में फिसलता हुआ मुझे नजर आ रहा था. तो मैं चाहूंगा यहाँ पर कि आप साइड ना दें, आप साइड उनको एंट्री ना दें, उनको रोकें, प्लांट ना होने दें. तो वो अपने आप थोड़ी सी गलतियां करें, क्योंकि उनको प्लांट करना है, वो पुश करने की कोशिश करेंगे, वो रोटेट करने की कोशिश करेंगे, एंड उस रोटेशन में आप उनको ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं एंड वहां पर एक अच्छे खासे किल्स निकाल सकते हैं अच्छे एंगल्स होल्ड करके. तो वो चीज़ अगर होती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सोच विचार तो वो भी कर रहे होंगे. काफ़ी प्रोफेशनल प्लेयर्स है, यहाँ तक अगर आए हैं तो अच्छी टीम बना के आए हैं, तो अगेन कुछ उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिलेगा. देखते हैं क्या उनकी तरफ से देखने को मिलता है एंड क्या एक कमबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर कमबैक करें, क्योंकि
आप अपना पहला गेम खेल रहे हैं क्वालिफायर्स 2 में एंड आप पहले ही गेम में अगर डोमिनेट हो जाते हैं तो बुरा लगता है, खराब लगता है। जो मेहनत अभी तक की है आपने, ऐसा लगता है वो सब पानी में चली गई। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस पे धक्का लगे। गेम पे चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह का कमबैक हमें कॉपियर्स की तरफ से देखने को मिलता है, एंड मिलता है कि नहीं वो एक ज्यादा बड़ा सवाल होगा। लेट्स सी। 18 सेकंड्स एंड नेक्स्ट राउंड हमें देखने को मिलेगा। So yeah, 10 seconds, and I guess the action is about to start as well. Pride Nation Esports have got their Sova on the ultimate ready right there, and I guess Viper and Sova from the side of Copiers as well have got their ultimates ready. So let's see if the Pit Viper is going to be put down over towards the B side or the A side or not. Ohms on the other hand is trying to take that early peek over towards the B lanes, and I guess that push is going to come in as well from the side of Envy. So Ohms has got to be very careful. Down to 68 points of health, but he's going to go ahead and land that headshot on towards Envy. And on top of that, he's going to get that overheal as well. He's trying to get that frag on towards Pingu, but Pingu on the other hand is walking in, pre-firing on the corner. So the pre-fire is definitely going to come into his advantage. I guess Pride Nation Esports have already taken control over towards the A side. Now this is something Dinkar was talking about, right? Dinkar ने कहा वो जो entry है वो उनको डिनाई करना पड़ेगा, बट कॉपियर्स की तरफ से ठीक है, माना ये राउंड में उनका इको है, बट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड, राइट, when it's going to be a full buy coming in from Copiers, I'm expecting them to provide a little bit more resistance in order to deny the entry coming in from Pride Nation Esports. Standing ahead. जी हाँ, बिल्कुल मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पर फाइनली वो चीज़ देखने को मिल भी रही है। 3v3 का सिनेरियो है, बट एट द सेम टाइम जो क्रॉसफायर्स अभी के लिए होल्ड किए गए हैं प्राइड नेशन की तरफ से, आई थिंक उनको यहाँ पर रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड जी हाँ, इसी चीज़ की बात कर रहा था, जो क्रॉसफायर्स यहाँ पर सेटअप किए थे ए साइड रीटेक करना। देखिए असासिन कुछ गेम्स होते हैं जब हमने पहले देखे हुए हैं, अगर 3v4 का सिनेरियो होता है तब भी टीम्स ए साइड को रीटेक करने के लिए नहीं जाती है अगर उनका इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। एंड स्टिल बट कभी कभी जब स्कोर लाइन 7-1 का चल रहा हो, 8-1 का चल रहा हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एंड टॉप ऑफ दैट उनका इको राउंड भी था। अभी के लिए राम प्रसाद की अगर हम बात करें, वो स्पेक्टर के साथ आने वाले हैं, हाफ शील्ड है उनके पास, एंड बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो मनचाही गन के साथ आना जरूर चाहते थे, बट बैड अभी भी स्पेक्टर के साथ वहाँ पर आएंगे। आई गेस उनके पास फैंटम या वैंडल का मनी है। जी हाँ, फैंटम एंड हाफ शील्ड के साथ आएंगे, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें प्राइड नेशन की, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर फुल बाय के साथ आएंगे। 24 ओम्स अगेन वहाँ पर जो मिड कंट्रोल है वो डिनाई करना चाहते हैं। एंड बैडस की अल्टीमेट की हम बात कर रहे थे कि वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, वो यहाँ पर एक साइड को डिनाई तो जरूर करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, फोर्स किया है कि जो प्राइड नेशन का टीम है वो ए पे जाए, बट यहाँ पर प्राइड नेशन का स्प्लिट देखिए, ये स्प्लिट फायदा पहुंचा सकता है कॉपियर्स को अगर वो यहाँ पर 1-2 किल निकाल लेते, तो शुरुआती किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ब्लेडस्टॉर्म जरूर रेडी है एनवी की तरफ से, बट उनके पास इंफॉर्मेशन है। डेमन ने वहाँ पर रामप्रसाद को वापस भेजा, वैंडल का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया गया, एंड अभी के लिए पूरा साइड कंट्रोल जो है वो मिल चुका है प्राइड नेशन को। पिंगू ने यहाँ पर एक और किल निकाल लिया है, एंड जो वाइपर हैं वो अंदर ही रह गए हैं, बट उनके सभी प्लेयर्स यहाँ पर बाहर जाते जा रहे हैं एक एक करके, ये दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। पाशा भाई रेडी है यहाँ पर, एंड जी हाँ एक और किल उन्होंने निकाला। 24 ओम्स यहाँ पर बाहर डालते हुए फ्लैश का इस्तेमाल किया। पाशा भाई यहाँ पर एक और फ्लैश करेंगे, एंड अब शायद यहाँ पर जी हाँ किल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ प्राइड नेशन एक और राउंड लेके जाते हुए, एंड असासिन बात करें कुछ भी काम नहीं कर रहा है कॉपियर्स के लिए इस बार, तो अल्टीमेट भी गया, सब कुछ गया, एंड स्टार्टिंग में भी जो प्राइड नेशन का टीम था वो पूरी तरह से स्प्लिट था, अलग अलग एंगल्स पे था, एंड उसका फायदा कॉपियर्स उठा नहीं पाई प्राइड नेशन, बल्कि दूसरी तरफ अगर उनकी बात करें उन्होंने पूरा फायदा उठाया, एंगल्स होल्ड किए एंड किल्स निकाले अपने लिए। लाइक आपने देखा, मैंने जैसे कि कहा राइट पहले भी, it's never a player or two holding a specific side. Last time हमने देखा कि Viper is using the Pit Viper, but there's no one to support her. Like there's that, like अगर 4 बंदे from Pride Nation Esports bounce on towards that specific Viper, what can that poor soul do? Right? Like एक बंदे पे अगर 4 बंदे चढ़ जाएंगे तो क्या ही होगा? And that is exactly what is happening right now. And finally, see, Badass once again goes there and gets taken down, but there's no swords or trade potential whatsoever. The Breach is playing a lot passive over towards the heavens, and I guess I understand the fact that Copiers wants to go in for the retake as well, but at the same time, you absolutely cannot then afford to have Badass onto the side. Either have your duelist up front in the front lines, or maybe just ask him to try and stay alive a little bit. Toxic Bullet on the other hand, right now is going to try and go in for that retake, but at the same time, I guess there is a backstab coming in the form of Pingu. So Pingu has already secured his positioning over towards the defense stance corner. I guess Toxic Bullet is going to be the final player. It's going to be Envy to push up and get himself the quad as well. So kill for Envy, and that is definitely going to be a feel-good moment for Pride Nation Esports. 10-1 as they're on towards double digits, and I guess this half might end 11-1 then.
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 11-1 हमें देखने को मिलेगा। जो यूटिलिटी यूसेज था असासिन, अगर हम बात करें इस बार भी टॉक्सिक बुलेट की तरफ से, ब्रीच का पिक मेरे हिसाब से यहाँ पर डिजास्टर्स साबित हो रहा है। ए पे गए थे एंड फिर से जो जितना भी यूटिलिटी उन्होंने यूज किया थोड़ा सा डिलेड था। जब पुश आ रहा था तब उनकी तरफ से कोई भी फ्लैशेस देखने को नहीं मिले। जब प्लेयर अंडर हेवन से निकल गए थे तब उनकी तरफ से वहाँ पर आफ्टर शॉक देखने को मिला था। तो थोड़ा सा वहाँ पर डिले जरूर है, उसका खामियाजा उनकी टीम भुगत रही है। एनीवेज अभी के लिए देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर जरूर एक स्प्रे डाउन देखने को मिला था 24 ओम्स की तरफ से, बट कोई भी बुलेट वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किलजॉय जैसे की तरफ से वो पूरी तरह से रेडी थे। रशी उन्होंने क्या शॉर्ट नेट करने की कोशिश जरूर की, बट वो भी यहाँ पर मिस आउट करेंगे। एंड साथ साथ में लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया है। पिछली बार वहाँ पर वाइपर स्पिट का इस्तेमाल किया गया था साइड के लिए, अब यहाँ पर उनका लॉकडाउन जाता हुआ क्या वो इस्तेमाल करेंगे। पाशा यहाँ पर उनको खत्म किया जाएगा। इसके साथ साथ 3v2 का सिनेरियो चुका। प्राइड नेशन के पास 3 प्लेयर्स जरूर रेडी हैं। साइड कंट्रोल उनको मिलने वाला है क्योंकि जो 2 प्लेयर्स हैं वो आपको नजर आएंगे ए पे ए से रोटेट करने में उन्होंने काफी ज्यादा देर निकाल दी है। एंड मैं इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा वहाँ पर कॉपियर्स के प्लेयर्स को, क्योंकि देखिए कितना ज्यादा देखभाल के जा रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इवन इफ एक जगह प्लांट हो रहा होता है तब भी प्राइड नेशन के प्लेयर्स किसी और एंगल से स्प्लिट होकर खेल रहे होते हैं। अलग अलग जो मैप कंट्रोल स्पेस कंट्रोल है वो उनकी तरफ से बेहतरीन देखने को मिला है। स्नेक बाइट का इस्तेमाल किया गया वहाँ पर। बोट हाउस का एक एंगल जरूर पीक करने की कोशिश करेंगे, बट गन उनके हाथ में नहीं थी। एयर हेड वहाँ पर उनको कंफर्म करते हुए 2-1 का सिनेरियो, बीच आखिरी पेयर बचे हुए हैं वो जाएंगे एंड जाते ही रह जाएंगे। बाहर भेजा गया उनको भी। डेमन का कंफर्मेशन है 11-1 का स्कोर लाइन जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे असासिन, वो हमें देखने को मिल रहा है 11-1। क्या हमें 13-1 देखने को मिलेगा? जैसे गेम जा रहा है वैसे लग तो रहा है कि 13-1 हो सकता है, बट एट द सेम टाइम कॉपियर्स I guess they're a newer team and it's gonna take them some time in order to get themselves suited up against all of these bigger teams as well. I guess Pride Nation Esports, in my opinion, celebrations are definitely gonna come in, but I guess they should not get ahead of themselves, right? Tougher teams, tougher opponents are gonna come in the later rounds of the specific tournament. So Pride Nation Esports should keep on going and grinding. And Pride Nation Esports का जो hold रहेगा, right, in the second half, I'm expecting some aggressive plays being made by Pride Nation Esports, but let's see. Talking about aggressiveness, दिनकर मैं बहुत aggression expect कर रहा था कॉपियर्स की तरफ से with that breach pick, but unfortunately कुछ भी देखने को नहीं आया। Let's see attack में अगर वो aggressiveness आता है कि नहीं। जी हाँ, एंड राउंड में भी एंडिंग में भी देखिए फ्लैश की उम्मीद कर रहा था मैं, बट वो नहीं आया। बट इस बार एयरहेड यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हुए 2 किल्स उन्होंने जरूर निकाले, बट 24 जो थे उन्होंने वहाँ पर इंसिडेंट टेर आउट किया फिनिक्स के साथ। अभी के लिए एयरहेड एक और किल निकालते हैं। एनवी ने भी वहाँ पर एक और निकाला। आखिरी प्लेयर रहना उनको स्पॉट किया गया, उनको कंफर्म किया गया। 24 ओम्स रेजिस्टेंस जरूर दिखा रहे थे, बट वो रेजिस्टेंस बन के रह गया। जो कोशिश थी वो कोशिश बन के रह गई। कामयाबी मिलने वाली है प्राइड नेशन को। 12-1 का स्कोर लाइन आ चुका है। कॉपियर्स जूझते हुए नजर आ रहे हैं अभी के लिए। मैच पॉइंट आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, एंड जो मैच पॉइंट है पूरी तरह से प्राइड नेशन के फेवर में जाएगा, क्योंकि देखिए पिछला राउंड जीते हैं। अच्छे खासे गन्स यहाँ पर अपग्रेड उनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कॉपियर्स की, उनको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अब यहाँ से कोई भी कम बैक करने की उम्मीद वो नहीं रख सकते हैं। ये राउंड उनको जीतना है अगर यहाँ पर किसी भी तरह की होप रखनी है वापस आने के लिए तो। एट द सेम टाइम प्राइड नेशन चाहेंगे यहीं पर इसी मैच पे इसी राउंड में इसको खत्म करना, बट आपने सही कहा कि अभी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो है अगले कुछ राउंड्स में उनका जरूर इंतजार करेंगे, तो वो अपने समय से आगे नहीं जा सकते। बट यहाँ पर देखिए एग्रेशन देखने को जरूर मिल रहा है प्राइड नेशन की तरफ से। वो यहाँ पर पूरी तरह से रोटेट करके मिड से आ चुके 24 ओम्स उनका इंतजार कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज को। 10 भी अपना डुएल है वो जीतेंगे। बैडस उनको इंस्टेंटली टेर आउट करने वाले हैं। एट द सेम टाइम जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो ए साइड पे पहुंच चुके हैं। एक अच्छा रीड मैं कहूँगा यहाँ पर प्राइड नेशन की तरफ से। देखिए उन्होंने अच्छी तरीके से रीड किया था कि अब यहाँ पर शायद एक पुश देखने को मिलेगा, एंड वही चीज कॉपियर्स ने की भी। राम प्रसाद उस तरफ एक और किल निकालेंगे, एंड जो ट्रेड गेम है फाइनली कॉपियर्स के फेवर में जरूर गया। साथ साथ में डेमेज इस एंगल पे है। आई गेस यहाँ पर 2 प्लेयर्स को एक साथ सरप्राइज कर सकते हैं, बट क्या वो चीज हमें देखने को मिलेगी? पिंगू यहाँ पर रोटेट करके साइड की तरफ जाते हुए एयर आउट की तरफ से रिकॉन डार्ट इमीडिएटली आने वाला है। साइड क्लियर करना चाहते हैं आई गेस, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कॉपियर्स की, उन्होंने थोड़ा सा डिले किया पुश में। अब यहाँ पर बीच की तरफ से यूटिलिटी आती हुई पिंगू को स्पॉट किया गया। पिंगू कंफर्म भी कर दिया गया है। 4v2 का सिनेरियो, एंड जो प्राइड नेशन शायद जो सोच रहे थे इस राउंड में गेम खत्म होगा, अब ये राउंड मेरे को कॉपियर्स के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है असासिन। Yeah, 2 versus 3 situation में bad advantage to Copiers की तरफ है, but I guess with the Sova and the Killjoy left out from the side of Pride Nation, right? Damon might just put in that element of surprise as well, and he has already done that. The spike hasn't been planted yet, and it's dropped over to his generators. The rest of the 2 players from the side of Copiers are kind of stuck
under the Raptors, and I guess with 20 seconds left on the clock, it's going to be that recall number coming in order to get the information of Max, and that is going to be the final kill coming in for Ahead. This is going to be the final nail in the coffin, and I guess it's going to be GGWP for Pride Nation Esports, as they're going to be your winners of the specific matchup. Then. जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर प्राइड नेशन जो आज के दोनों ही मैप्स रहे हैं, असासिन फुली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से देखने को मिला। फर्स्ट गॉडलाइक 13-0 एंड अब यहाँ पर प्राइड नेशन की तरफ से 13-1। प्राइड नेशन की तरफ से मैंने एक्सपेक्ट भी किया था एक डोमिनेशन, जस्ट बिकॉज राउंड ऑफ 16 में पिछले क्वालिफायर्स में गए थे, तो इसमें भी उसको रिक्रिएट करेंगे एंड आगे जाने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम इतना डोमिनेशन नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। कॉपियर्स वहाँ पर एक ज़रूर सरप्राइज ब्रीच पिक के साथ आए थे, मैं सरप्राइज था, उनके परफॉर्मेंस से और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। एनीवेज देखते हैं यहाँ पर जो आगे आने वाले क्वालिफायर्स है उसमें कॉपियर्स की तरफ से और बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि जो दोनों ही टीम्स आज हारी हैं, जैसा कि आपने बताया था कि उनके पास और भी चांसेस हैं क्वालिफायर्स 3 एंड क्वालिफायर्स 4 में और ज़्यादा इंप्रूव करके आने का, क्योंकि समय है दोनों ही क्वालिफायर्स में। अगर हम बात करें जो आगे के क्वालिफायर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप अपनी टीम को और ज़्यादा रीबिल्ड कर सकते हैं, जो कमियाँ हैं उस पर काम कर सकते हैं एंड कम बैक करने का आपका पूरा जो टाइम है वो आपके पास अवेलेबल है। अभी के लिए बढ़ते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। एनवी की तरफ से 17 किल्स असासिन, उन्होंने जो चार्ज था अपनी टीम की तरफ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिया था एंड वो स्कोर कार्ड में नज़र भी आ रहा है। Yeah, एनवी तो अलग ही लेवल में थे। I don't know how exactly he was fighting himself in positions where his enemies are like just standing right in front of his crosshairs, but at the same time that's the individual brilliance coming in from NV as well, right? 17 kills, 8 deaths. The man has got himself 4 first bloods the entire game. He's going to be topping the boards with that 17 to 8 KD as well. Now the thing is that Envy has always been a really, really good duelist. But what I really want to say is that Pasha Bhai put up a really good performance as well. And once again, just like the godlike game, the previous one, right? It was a constant battle between Pasha Bhai and Envy on who exactly is going to be the top in the boards. And I guess Envy took the mantle here. And yeah, Pingu, I'm really happy to see him perform as well in this specific game. But I guess still that match potential hasn't come out yet from the side of Pride Nation Esports. So it is definitely going to come out in the later games in this specific tournament against better teams, better opponents as well. But yeah, I guess Dinkar, right? मेरे को लगता है कि Pride Nation Esports they're gonna do a lot better in their future games, because see, Copiers they were an easier opponent to deal with in my opinion, and I completely agree with your point as well. When that breach pick came out of Copiers, I was expecting a better game, and that single duelist meta, I was very happy to see an underdog team like Copiers go ahead and put up that specific composition into use on a map like ASET as well. But at the same time, I was kind of disappointed seeing their defense, because I was expecting a lot of aggression with that breach play. See, breach उठाने का जो motive रहता है दिनकर. See, especially me, right? Me who has witnessed a lot of games and plays on higher ranks as well. See, the way we use breach and the way professionals use breach as well is they use breach as sort of like a duelist as well. So we use breach to go ahead and put up these flashes, put up that aggression, get that man advantage, fall back using the exact same utility, and secure the man advantage and move on with the numbers game. So that is something that I was expecting from Copies as well. But at the same time, that Reina he kind of fell short. And I guess there's something new as well, a newer element added to this specific stream, guys. So we're going to be seeing that in a minute or two. And yeah, there you go. So this is something that our lovely team over at production worked over the course of this specific few days that we had off after qualifier number 1, right? Look at this beautiful creative made Dinkar. जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन, कुछ नया देखने को मिल रहा है। 13-1 का स्कोर लाइन। साथ साथ में MVP अगर हम बात करें, एनवी अपनी तरफ से, राम प्रसाद दूसरी तरफ से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं उस चीज़ को देख के। साथ साथ में जो बाकी के स्टैट्स हैं, एयरहेड ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, काफ़ी जगह पर वहाँ पर एंट्री निकाल के दी थी अपनी टीम के लिए, एंड वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रही है उनकी टीम की जीत के लिए। एट द सेम टाइम अगर हम कॉपियर्स की बात करें, कुछ जो प्लेयर्स थे, बैडएस, स्काईहॉक, टॉक्सिक बुलेट, वो थोड़ा सा वहाँ पर पीछे रह गए, एंड आई गेस एक टीम परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट थी उनकी तरफ से। आई होप जो क्वालिफायर्स 3 जब आए तो वहाँ पर एक बेहतरीन टीम बन के निकले कॉपियर्स, एंड वहाँ पर हमें एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले। बट इस बार प्राइड नेशन का डोमिनेशन देखने को मिला था। एक्सपेक्टेशंस जो थी उस पर खरा उतरी है प्राइड नेशन की टीम। उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं चैट में, वो काफ़ी खुश हैं अपने परफॉर्मेंस से। साथ साथ में कॉपियर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हुए एंड उनको भी सपोर्ट करते हुए, ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एनीवेज, आज के दोनों मैचेस असासिन
थोड़ा सा वहाँ पर वन साइड देखने को मिल रही है 13-0 13-1 ऐसा एक्सपेक्टेशन मैंने किया नहीं था जब दिन की शुरुआत होती है आप रन डाउन करते हैं कौन कौन से गेम्स आपको आज कास्ट करने हैं एंड क्या क्या उम्मीदें रहती हैं क्या क्या बोलना है आज किस तरह के गेम्स देखने को मिलेंगे ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 2 गेम्स एंड 13-0 एंड 13-1 का स्कोर लाइन देखने को मिलेगा या सी क्वालिफायर नंबर 1 में भी हमने ये देखा था स्टार्टिंग में हल्का सा रहता है ऐसा कि we are going to be seeing a lot of one-sided games, we're going to be seeing a lot of storms as well, but at the same time it's all a good practice and a good learning curve for all of these newer teams as well. So guys, please don't be disheartened, learn from the mistakes that you guys made, learn from your flaws as well and become better, keep grinding. And I'm really happy, by the way, I'm not going to lie, Copiers bhale hi wo ye game haare, but the effort, right? The effort they put into learn this new single duelist meta and the single duelist composition that they went on with this specific match as well. All they have to do is brush up on their skills a little bit, brush up on the trade game, the 1v1 duels that they took. They have to start winning them, and they have to go ahead and strategize a little bit better, both on their defense as well as their attack. Now, with that said and done, I guess we can throw it to a short break. But before that, guys, I want you guys to go ahead and check out our sponsors, Josh App and Hell Energy Drink, for making this specific tournament possible. Without them, you guys wouldn't be seeing all of this amazing jazz that you guys are seeing as well. So please support them using the link down in the description below. Get yourselves a carton or even a can of Hell Energy Drink and energize yourself throughout this specific tournament as well. At the same time, download the Josh app and browse some content over there, because I guess the Josh app, they themselves have been making quite a big move. I recently saw the superstar rapper Bacha on the Josh app as well. So yeah, you guys can definitely check out his content as well on the Josh app. So go ahead, check it out, and entertain yourself while we go in for a quick break. So see you guys really soon. Don't go anywhere. Stay tuned. We're gonna be back with the final game really soon. There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell Energy. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell Energy. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा।
Well. Alrighty then, ladies and gentlemen, welcome back to match number 3 of the Esportz Premier Series 2021 Qualifier number 2, brought to you by Hell Energy Drink and Josh App. I'm your host Assassin47, and joining me on the desk is Dinkar Chaudhary. So Dinkar, अभी तक हमने 2 storms देख लिया है. I guess the third game might be a stomp as well. You never know. I'm really expecting stomp na ho. I'm expecting a really close game because day number 1 I really don't want to end it. Stomps FTW, but yeah, I don't want to do that. I really want to see the third game to go the distance and go down the wire as well. So hoping for a better specific match. But got YouTube right there. Hello. ऑलराइट, तो अभी हमें देखने को मिलेगा ब्लड सर्कल esports वर्सेस थंडरिंग. एंड सासिन, इवन इफ हम सरप्राइज हैं थोड़ा सा पहले 2 गेम्स देख के, बट स्टिल जो बेस्ट ऑफ जो राउंड ऑफ 64 रहता है, वहाँ पर कुछ ऐसे गेम्स देखने को मिलते हैं शुरुआत में. उसके बाद राउंड ऑफ 32 में कभी कभी थोड़ा बहुत इतना कुछ देखने को मिलता है, बट राउंड ऑफ 16 से जो कॉम्पिटिशन होता है वो काफ़ी कड़ा हो जाता है एंड वहाँ से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. अभी सुनाई में आ रहा है कि गेम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है. काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्विक गेम्स हो रहे हैं, जल्दी हमें गेम्स देखने को मिल रहा है. ज़्यादा इंतज़ार नहीं है. इंतज़ार का फल कहते हैं मीठा होता है, बट कभी कभी चीज़ें जल्दी होनी चाहिए एंड वो आज होता हुआ. गेम थोड़ा सा ज़्यादा लास्ट करे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सा क्लोज जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा. बट लेट्स सी ये थर्ड गेम हमारे लिए क्या लेके आता है सचिन. डेफिनेटली यार, इंतजार का फल मीठा तो होता है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि तूने कहा, समटाइम्स things if happen early, it's really good as well. I wish that sort of applied in real life as well, but unfortunately it doesn't. So let's quickly jump straight into the draft as well, guys. The draft is ready. Just got a heads up from this side of production, and there you go. Why don't we take over, Dinkar? It's going to be the map of Ascent, and I guess wow, 4 euros. Yeah, that's some next level trolling happening here, but सरप्राइज नहीं होऊंगा. अभी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. योरू एक भी देखने को मिलेगा कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल होने वाला है. एट द सेम टाइम योरू जो भी टीम लेती है, नॉर्मली मैं देखता हूँ वो मिड कंट्रोल को पूरी तरह से निकाल देते हैं. स्ट्रैटेजी में से वो काफ़ी कम देखने को मिलता है. या तो ए पुश की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो बी पुश ज़्यादा देखने को मिलता है. आज वो चीज़ हो कि नहीं, उस पर मेरी नज़रें होने वाली हैं. योरू होगा कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल होने वाला है. थोड़ी देर पहले 4 यूरो नजर आ रहे थे, अभी एक भी नजर नहीं आ रहे हैं. देखिए यही होता है. बट एनीवेज, बात करते हैं पार्थ की. उन्होंने रेना पे लॉक कर लिया है. एट द सेम टाइम एस्ट्रा मुझे नजर आ रहे थे थंडरिंग ईगल्स की तरफ से, बट वो गायब हो चुके हैं. अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ ब्लड सर्कल esports की, उनकी तरफ से एस्ट्रा लॉक कर दिया गया. तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब एस्ट्रा आया था तब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था उनसे. ज़्यादा देखने को देखना नहीं चाहता था कॉम्पी में. बट जिस तरह से मैंने उनका यूसेज देखा, जो नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजीज देखने को मिली, मज़ा आया वो चीज़ देख के. अभी देखते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज रहती है टीम्स की तरफ से, किस तरह का एस्ट्रा का यूज रहता है. क्योंकि एस्ट्रा भी एक ऐसी एजेंट है, वो या तो पूरी तरह से हीरो रहेंगे आपके लिए, या तो जीरो बन जाएंगे. वो जो डिजास्टर्स पिक कभी कभी साबित, जिस तरह से ब्रीच अभी साबित हुए पिछले मैप पे, वही पिक एस्ट्रा भी साबित हो सकते हैं. डिपेंड करता है आप कितना उसके साथ सुप्रीमेसी लेके आते हैं. एंड मैं चाहूंगा यहाँ पर एस्ट्रा सुप्रीमेसी इस गेम में देखने को मिले, एंड एक वेल बैलेंस गेम प्ले दोनों ही टीम्स की तरफ से देखने को मिले. बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा दिनकर. मेरे को ये लगता है कि वो एस्ट्रा पिक, hope the Astra pick is going to be good for the side of Blood Circle Esports as well, because it's Kratos who is going to be wielding that Astra. Let's see if the god can try and get something done or not. But right now, Thundering Eagles, उनकी तरफ से जो साइफर पिक है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है actually, because the same can be seen from the side of Blood Circle Esports as well. And Thundering Eagles का जो entire composition है, I'm expecting it's going to be interesting to see them if they're going to try and go aggressive a little bit, because that was something that was missing from the previous game as well on Essence. So maybe hoping for a better game in this one. Right now it's going to be silent to be holding on over towards the A side with a minute and 25 seconds left for the clock. I guess Blood Circle Esports, they have got a marathon to run as they are already taking control over towards the A mains, and there comes the wall from Valerian. So that is definitely going to eat up a lot of time from the side of Blood Circle Esports that they execute over towards A. And I guess that wall that is going to be built up over towards the A mains is going to force Blood Circle Esports into moving over towards the A shot position. And I guess that was the most likely by Necro Chadies, and Valerian is going to work out in the favor of Thundering Eagles. And there you go, ladies and gentlemen, Thundering Eagles, they're going to have an absolutely amazing hold over towards the A side, and after blocking off the entrance from Blood Circle Esports over towards the A mains,
is going to be them repositioning themselves over towards the A shot and finding all of these kills onto the players from Bloodsucker Esports as well. So think that क्या लगता है pistol round Bloodsucker Esports की तरफ से ज़्यादा bloodshed दिखाने? जी एंड काफी क्विक था अगर हम बात करें थिंकिंग की थंडरिंग ईगल्स की तरफ से वॉल वहां पर किया गया साथ साथ में स्लो अप डाला गया कैटवॉक की तरफ वो जो स्लो पुश था उसको स्लो डाउन कर दिया गया एंड उसके बाद उसको कपल किया गया एक अच्छे फ्रैग के साथ फ्रैग पोटेंशियल था वो भी बेहतरीन था सब कुछ यहाँ पर थंडरिंग ईगल्स के लिए काफी बेहतरीन क्या देखते हैं इस बार भी क्या हमें सेम चीज देखने को मिलेगी पार्थ काफी ज्यादा यहाँ पर अग्रेसिव खेलते हैं एंड उसका पूरा फायदा मिल रहा है तीसरे किल की तरफ भी जा सकते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया गया सही टाइम पीछे की तरफ गया पर डैमेज जो है वो ऑलरेडी कर दिया गया उस तरफ से यहाँ पर ब्रायन जो थे उन्होंने भी 2 किल निकाले एंड इसी के साथ साथ एक फ्लॉलेस राउंड जिसकी उम्मीद मैं कर रहा था यहाँ पर वो यहाँ पर देखने को मिला 2-0 का स्कोर लाइन थंडरिंग ईगल्स प्लेइंग ब्यूटीफुली राइट नाउ पहला राउंड यूटिलिटी यूसेज बेहतरीन साथ साथ में उसको कपल किया फ्रैग पोटेंशियल के साथ इस बार अग्रेशन दिखाया वहां पर पता था गन्स की कमी वहां पर दूसरी साइड पे होने वाली है उसका पूरा फायदा उठाया अभी के लिए अगर हम बात करें थंडर ईगल्स की तो वो अपग्रेड नहीं करने वाले गन्स को एट द सेम टाइम ब्लडसर्कल इसके पास मौका है वैंडल्स लेके आए हैं फैंटम्स लेके आए हैं वैंडल्स पे एक्चुअली सभी प्लेयर्स अब वैंडल्स के साथ आते हैं फैंटम्स के साथ आते हुए तो लेट्स सी क्या इस बार अपने आप को रिडीम कर पाए क्योंकि ये वो राउंड है जो मेरे हिसाब से गेम का फ्लो चेंज कर सकता है That's absolutely true and I guess अगर वो flow change दिखने को भी मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा because I really want both of these teams to have that neck-to-neck competition as well and I guess Brainerd Droid is going to be doing exactly that by taking down Kratos over towards the Catwalk's position. Phoenix on the other hand is going to try and get that immediate trade. He's going to get himself another one. That's not a bad one. Thundering Eagles, they're sort of running at a little bit of a problem right now as you know that specific pick coming in from Phoenix is gonna rain havoc onto towards Thundering Eagles. Right now, I guess Bloodsucker Esports after a 2 vs 3 situation are going to be the ones who are gonna find themselves at a disadvantage. Bloodsucker Esports के कुछ work out हो रहा था mid पे, but yeah, that man advantage is definitely going to be neutralized by gamers screaming. Interesting name, a lot of numbers over there, something a gamer would definitely do. Yeah, Phoenix left out with 46 points of health is going to be the only healthy player from side of Bloodsucker Esports. But with him taken down, I guess Valerian is going to try and just put that final nail in the coffin as well in that specific round. And there you go, the third round of the board for Thundering Eagles. Despite the heroics coming in from Phoenix over towards middle, I guess Thundering Eagles they're gonna keep up that pressure on towards Bloodsucker Esports. And Bloodsucker Esports को पता नहीं क्या हो रहा है, but I guess it's finally time for them to take a little bit of a pause. Guys, trust me, tactical timeouts they exist for a reason. You can take them and try and find as to what exactly is going wrong with you guys. जी एंड अब यहाँ पर 2 ऑप्स हमें नजर आ रही हैं शायद एक मिड की तरफ जाते हुए नजर आएगा एंड एक जो है वो यहाँ पर एक प्ले करने के लिए जरूर काम आने वाला है सही एंड रेडी है पीक का इंतजार करते हुए पीक किसी भी समय आ सकता है पीक आया भी बट सही है वहाँ पर उसका फायदा नहीं उठा पाया एट द सेम टाइम टेलविंड का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ जाएंगे अब वहाँ पर हमें हेवन के करीब से पीक करते हुए नजर आएंगे बट एट द सेम टाइम देखिए सेज जो है इनकी कितनी ज़्यादा क्विक है अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया रेवन का एक्चुअली हेल्थ पॉइंट जो है वो 5 हेल्थ पॉइंट पे आ चुके हैं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं अभी के लिए फिनिक्स ऑन द अदर हैंड उन्होंने ज़रूर फिनिक्स इनका नाम है साइफर से खेलते हुए पार्ट फाइनली वहाँ पर कनेक्ट करते हुए अपनी ऑपरेटर को क्रेटोस को वहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया एक बुलेट किसी भी गन से एंड जो जेट है वो हमें किसी भी समय पे बाहर जाते हुए नजर आते हैं पीक के लिए जाएंगे ओह माय गॉड व्हाट अ शॉट 2 हेड्स यहाँ पर पॉप ऑफ कर दिए हैं हेल्थ इनकी काफी ज्यादा लो थी सही उसका पूरा फायदा उठाते हुए बट अब यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म का सामना करना पड़ेगा पार्थ उस तरफ काफी बेहतरीन तरीके से ऑफ करते हुए एंड एक अच्छा रेजिस्टेंस था इस बार ब्लडी स्पोर्ट्स की तरफ से थैंक्स टू दोज जो 2 शेरिफ शॉट्स आए थे वहाँ पर साइफर की तरफ से बट उसके अलावा वहाँ पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला पूरा जो ऑफ था थंडरिंग ईगल की तरफ से वो काफी अच्छे से कनेक्ट हुआ फर्स्ट मिड पे देन बी की तरफ गए वहां पर भी सेम डोमिनेंस दिखाया एंड थंडरिंग ईगल्स यहाँ पर एक और राउंड लेके जाने वाले हैं असासिन कहते हुए थोड़ा खराब लग रहा है बट ऐसा लग रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर वन साइडेड गेम Man, please don't, guys. Bloodsucker Esports, I believe in you guys. Go ahead and put out your level best as well. But at the same time, I really can't blame them as well, right? Thundering Eagles double up setup. I mean, come on. Double up setup is really rare to see, and I guess them pulling off that double up setup and getting that advantage as well. Look at that dash coming in from Ravenhold to try and take down his nemesis on the side of Thundering Eagles, and he's going to be successful in doing so as well. Gamer Screamy on the other hand finds the frag onto his brain droids. Moving on to the retake, I guess Thundering Eagles are not going to be having themselves a smoke, which is definitely going to put them at a big disadvantage. Right now, Ravenholm has picked up that operator from the corpse of his nemesis, and I guess he's going to be putting up that
that operator over towards the Raptors position as well. But Valerian, on the other hand, he finds a frag on towards Ravenholm, and I guess he's going to be the only one to move forward with his retake. But his NecroJD's trying to go in for that save. I'm not really sure why Valerian tried to go in for that retake all by himself. Like if the call off for the save had already come in from the South Thundering Eagles, they should have gone in for the save beforehand. But I guess Valerian was just trying to get that economic damage in for the side of Blood Circle Esports. But maybe yeah. I guess he could have done that by getting some exits over towards Metal as well. But in the end, it's okay. NecroJD is gonna save that Vandal, and I guess they're gonna have enough money to still put what NecroJDs. Okay. इस बार देखिए असासिन जो मेरे को लगा कि जो डिफरेंस मेकर था पिछले कुछ राउंड से जब भी ये पुश हो रहा था तो वहाँ पर वॉल आ रही थी एंड इस वजह से जो रश था पूरी तरह से स्लो डाउन हो जा रहा था वहाँ पर ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स की तरफ से एंड वो अलाउ कर रहा था टाइम थंडर ईगल्स को रोटेट करके ए साइड पे आने का बट इस बार वो वॉल नहीं आया एंड उसका पूरा फायदा वहाँ पर ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स की तरफ से उठाया गया एंड उन्होंने उसका फायदा उठा के यहाँ पर कंफर्मेशन निकाला एंड जो किल्स हैं वो निकाले हैं पहला राउंड लेके गए हैं क्या ये शिफ्ट ऑफ मोमेंटम क्या ये चेंज ऑफ मोमेंटम है जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स को हमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी क्योंकि सुबह से सुबह से तो नहीं जो पहले जो 2 गेम्स हैं वो पूरी तरह से वन साइडेड हुए थे एंड ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स क्या वापसी करेंगे गन्स की कोई भी कमी नहीं है स्क्रीमी के पास एक्चुअली क्रेटोस के पास ऑफ भी आ चुकी है एट द सेम टाइम जेड्स जो हैं वो जज के साथ आ रहे हैं जज बहुत बड़े डिफरेंस मेकर है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बी साइड पे वो पूरी तरह से डेसिमेट कर सकते हैं किसी भी टीम का रश एनीवेज क्या होता है देखते हैं स्क्रीन में ऊपर रिकॉन डाट के लिए जाएंगे साइड को क्लियर करने की कोशिश करेंगे बैक साइड को क्लियर करने की कोशिश भी दोबारा की जाएगी एट द सेम टाइम जो कैम है वो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करने के लिए काम आएगा ऑलराउंड का इस्तेमाल किया गया जो पूरा बी साइड था उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी रेवन वहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे क्रेटोस ने वहाँ पर बेहतरीन ऑफ शॉट कनेक्ट किया जो बैलेंड्रॉइड ब्रायन ड्रॉइड थे उनको वापस भेजा छोटा चेतन आगे बढ़ रहे हैं फाइनली उन्होंने यहाँ पर साइबर के इस्तेमाल करके एंगल जरूर होल्ड कर रहा था बट मैं इसी चीज की बात कर रहा था जज क्लोज रेंज में पूरी तरह से डेसिमेट कर सकते हैं ओपोनेंट कंट्रोल करके भी दिखाया 3v3 का सिनेरियो है रेवन को रेवन ने एक्चुअली स्पॉट किया पार्ट को कंफर्म किया बेलोरिन वहां पर जरूर रिवाइवल के साथ थे बट एक वाइट भी का इस्तेमाल करके बेलोरिन ने वहां पर किल भी निकाल लिया सयन उसको काफी प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे स्पाइक जरूर प्लांट हुआ बट सयन वो कहाँ रुकने वाले हैं उन्होंने वहां पर फिनिश कंफर्म किया साथ साथ में जो ब्लाइंड था उनकी तरफ से वो बेहतरीन आया था इस तरफ थंडरिंग ईगल्स जो कि हमें लग रहा था शायद ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स कमबैक करेगी उस कमबैक पे शुरुआत पे ब्रेक्स लगा दिए हैं असासिन ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स का वो अटैक कितना ही शानदार था राइट बट एट द सेम टाइम वलेरियन का वो एक रिवाइव दैट रिजरेक्शन that ultimate it made all the difference. The man advantage was with Blood Circle Esports, but at the same time it's going to be immediately neutralized and taken away by the players from Sarah Thundering Eagles as well. And I guess Sayan did a really good job as well by getting both of those kills in that specific retake attempt, and there you go. Going to be seeing a little bit of that, one versus one comparison between both the support players, both the sentinels from the side of Thundering Eagles as well as Blood Circle Esports. It's going to be NecroJDs and Phoenix, right? NecroJDs with 4 kills and 2 deaths, and Phoenix with 4 kills and 6 deaths. So right now, as far as the sentinels are considered, they both are doing their jobs simply. But at the same time, I'm expecting the duelist inside to step up a little bit more. And look at Valerian, man. He's making all the difference right now. And I guess he's going to be dearly missed over towards the aim position because as Tinker mentioned a couple of rounds ago, right? That wall was that one game changer that Circle Esports that execute over towards A. And now that the wall is missing, I guess it's going to be easier for them to move to the side. The fact that Parth is holding that operator as well over towards the Heavens position. So yeah, the ultimate, the Cosmic Divide is going to come in from the Astra. Now let's see if Parth is going to push in through that Cosmic Divide or not. And I guess he's going to hear the plant coming in, but Valerian is going to find the frag onto his Kratos, and with that, the Cosmic Divide is going to be falling down anytime soon. With 40 seconds left from the cloud, the spike is in the favor of Thundering Eagles. देखिए सासिन जब भी मैं कॉस्मिक डिवाइड देखता हूँ निकलो वहाँ पर वो किल कंफर्म जरूर करेंगे बट कॉस्मिक डिवाइड मैंने देखा है कि अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो आपसे ज़्यादा वो आपके ओपोनेंट की हेल्प कर देता है एंड वही चीज़ इस बार भी हुई है
यू नो कॉस्मिक डिवाइड का इस्तेमाल किया गया, बट वो जो जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए था वो नहीं हुआ। एंड फिर से यहाँ पर थंडरिंग ईगल्स जो है वो एक और राउंड लेके जाती है। पार्थ अपनी जो ऑप है उसको भी बचा के रखने वाले हैं, वो यहाँ पर उनके पास अभी प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम अगर हम छोटा चेतन की बात करें, वो आई गेस वहाँ पर ज़रूर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी पूरी टीम ही यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमी के साथ, जस्ट बिकॉज पिछले कुछ राउंड्स उनके मुताबिक अभी तक नहीं गए हैं। पार्थ फिर से रेडी है, इस बार पीक का इंतजार करते हुए, पीक आएगा भी एंड वो मिस नहीं करने वाले हैं इस बार। रेवन है एंड एक और पीक आया था बट इस बार पार्थ मिस करेंगे। फॉर्चुनेटली अभी के लिए 4 प्लेयर स्टैंडिंग इन। क्या कर रहे हैं क्रेटोस? आई मीन असासिन सिर्फ ये पीक ही नहीं, अगर मैं बात करूँ अभी तक जो यूटिलिटीज यूसेज रहा है, अगर हम बात करें यू नो एस्ट्रा का, वो उस तरीके का नहीं रहा है। हम बात कर रहे थे किस तरह से एक डिजास्टरस पिक हो सकता है, वो हो भी रहा है। यू नो ग्रेविटी वेल का इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बट वो भी तक देखने को मिला है। ब्रायन वहाँ पर जरूर किल्स निकालेंगे, दोनों किल्स आसानी से निकालते हुए। स्क्रीमी की तरफ से वहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया। इसी के साथ साथ 7-1 का स्कोर लाइन थंडरिंग ईगल्स की तरफ से। गेम जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है मुझे ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट की तरफ असासिन। Well done. Man, Blood Circle Esports are really struggling at this point, and I guess Thundering Eagles and that aggressiveness that they're showing as well on that defense is really panning out. But at the same time, we can't really forget the fact that you know Ascent is a defender-sided map, and Blood Circle Esports, I guess it's going to be really difficult for them to get all of these rounds on their attack side. Now that they've got 3 of their ultimates ready, let's see if the Empress or the Blade Storms or even the Neural Tap is going to be used or not from the side of Blood Circle Esports. Sayan, on the other hand, is going to try and get that early pick over towards the B-main's position, but a quick smoke is gonna block out the vision for Blood Circle Esports over towards the B-mains. And look at Phoenix. He's playing it out really well, by the way, by holding on over towards the I-mids and you know, cutting off the rotations coming in from the Thundering Eagles. But you know what it is going to be? Once again, Valorant to go and get inside that frag. And look at Necro JD's and Qualifier. Kate set up over towards the boathouse position. What a play being made by Thundering Eagles. And at this point, I guess it's really sad to say, but Dinkar, यार आज का दिन तो स्टॉर्म ही है यार। जी हाँ, बिल्कुल स्टॉर्म देखने को मिल रहा है एक के बाद एक। एंड फिनिक्स ने वहाँ पर जो 2 शॉट्स मिस किया, आई गेस वो डिफरेंस मेकर थे। देखिए वुमेन पूरी तरह से स्ट्रैंडेड थे मिड में, कोई उनके पास बचने नहीं चाहिए थे, वो क्योंकि पूरी तरह से मिड में थे, किसी और तरफ देख रहे थे। एंड साथ साथ में जेट का भी हेड जो था वो नजर आ रहा था, बट उसका फायदा नहीं उठा पाए फिनिक्स। अभी के लिए ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स की पूरी टीम यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें बेलेरियन की, तो वो इकलौते प्लेयर हैं जो कि डबल डिजिट पे पहुंचे। अगर हम किल पोटेंशियल की बात करें, फ्रैगिंग की बात करें, 9 राउंड्स हो चुके हैं। थंडरिंग ईगल्स की तरफ से ये दर्शाता है कि यू नो उनकी तरफ से भी जो किल्स का डिवीजन रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। एट द सेम टाइम पीक का इंतजार ज़रूर किया जा रहा है। 1 वे स्मोक वुमेन ने किया था वहाँ पर, बट पार्थ का जो इंतजार है वो इस बार इंतजार बन के रह जाएगा। फिनिक्स की शरीफ आने वाली है, किल निकाला एंड वहाँ पर न्यूरल थेफ्ट का इस्तेमाल भी किया। एट द सेम टाइम उनको अब गन भी मिल जाएगी, वैंडल वहाँ पर उठाने वाले हैं। बेलेरियन को पीछे की तरफ धकेला जाएगा। सैयन वहाँ पर पूरी तरह से रेडी थे, स्पॉट किया है, किल निकाला। एंड यहाँ पर एक ही सेकेंड में, कुछ ही पलों में पूरी की पूरी ब्लड सर्कल ईस्पोर्ट्स जो थी वो मैप से साफ कर दी गई। चाहे मिड पे बात करें, चाहे जो बीमेन था उसकी तरफ बात करें, हर जगह प्लेयर्स को डोमिनेट किया गया, हर जगह प्लेयर्स को कंफर्म किया गया। एंड एक और राउंड थंडरिंग ईगल्स के खाते में जाता हुआ। Man, I'm not even going to lie. The cross-up placement coming in from Sayan and that specific holdover towards the A-shot position, right? That was impressive. Like, controlling your spray and immediately repositioning your crosshair as well to another player. It's really a skill, guys, and it really takes balls for Sayan to do that quite openly over towards the A-shot position. So that sort of shows the kind of dominance that Thundering Eagles are bringing on the table as well against Blood Circle Esports. Balerian, once again, you know, creating that wall over towards a well position. Pizza की तरफ से wall के ऊपर jump करेंगे and he's going to try and get that early pick as well. He's going to spot out the jet from inside of Blood Circle Esports, but at the same time, look at the aggression coming in from Necro JD's. अगर एक बंदा पूरा distraction ले रहा है from Blood Circle Esports over towards one part of the map or one position of the map, दूसरी जगह से that exact same push is going to come in as well from Thundering Eagles, and that is something to you know to be really careful about, guys, if you're Blood Circle Esports. Last player standing. One enemy remaining. Spike down mid. एक चीज़ जो है अभी देखिए, इस राउंड में क्रेटोस के पास यूटिलिटीज थी, बट वहाँ पर फिर से उनका यूसेज मुझे ज़्यादा उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला। पीक किसी भी समय पे ब्राइन की तरफ से आ सकता है। क्रेटोस यहाँ पर सही दिशा में जाते हैं, बट क्या सही रिजल्ट उनको मिलेगा? जी हाँ,
फाइनली यहाँ पर सही रिजल्ट आता हुआ ब्लड सर्कल Esports एक राउंड और लेके जाएंगे एंड एक 9-3 हाफ की तरफ बढ़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। 9-3 हाफ होता है एंड उसके बाद जो डिफेंडर्स फेवर जिस तरह से मैप है, शायद यहाँ पर हमें कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर काफी कम देखने को मिलती है। नेक्रो इस बार, ओ माय गॉड, 4 ऑपरेटर्स अभी देखने को मिल रही है हमें, जो कि जरूर चेंज होंगी जब आखिरी कुछ सेकंड्स आएंगे। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर 4 ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे हमें एंड एट द सेम टाइम बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर वैंडल्स के लिए जाने वाले हैं। बात करें अगर हम ब्लड सर्कल Esports की, उनके पास मनपसंद के गन जरूर है। एक प्लेयर वहाँ पर स्पेक्टर के साथ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए, निक्रो रेडी है, पीक का इंतजार करते हुए, छोटा सा पीक आने वाला है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पार्थ यहाँ पर काफी सारे ऑपरेटर शॉट ने कनेक्ट किया, बट रिकॉन से उनका पोजीशन रिवील था, 80 डैमेज पड़ चुका है। क्या एक और शॉट पड़ेगा उनको एंड पार्थ कंफर्म हो गया अभी के लिए हीलिंग का इंतजार करते हैं, बट ब्रांड वो कहाँ रुकने वाले हैं, वो यहाँ पर बाहर की तरफ गए, एक किल निकाला एंड अपनी टीम को टाइम बाय करके दिया। यहाँ पर जो बाकी पे बी के रीजन पे जो प्लेयर्स थे वो रोटेट करके पा सकते हैं। एक और पीक आता हुआ, क्विक पीक था एंड उसका फायदा पार्थ नहीं उठा पाए, हील उनको मिल चुकी है, बट यहाँ पर एक किल की उम्मीद थी। स्लोप का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो रश है उसको स्लो किया जाएगा, साथ साथ मैच ट्रैक यूटिलिटीज जो है वो फाइनली आ चुकी है। सायन पूरी तरह से रेडी है। पार्थ यहाँ पर फाइनल शॉट कनेक्ट करते हुए सब कुछ यहाँ पर थंडर ईगल्स के फेवर में जाता हुआ ब्लेड स्टॉर्म कनेक्ट हो चुका है, पहला, दूसरा, ओ तीसरा यहाँ पर मिस करेंगे। फीनिक्स यहाँ पर एक किल निकालते हुए अपनी टीम के लिए इकलौते में 2 किल उन्होंने निकाल लिए, बट वेलेरियन आएंगे एंड यहाँ पर किल निकालेंगे, रिवाइव करेंगे। आखिरी राउंड था, 10-2 का स्कोर लाइन एंड थंडरिंग ईगल्स अब आ चुकी है अटैक पर। ब्लड सर्कल Esports ऑन डिफेंस, क्या हमें यहाँ पर एक चेंज ऑफ सिनेरियोस देखने को मिल सकता है असासिन? Maybe you never know. Like, a lot of times we have seen that all of these teams, right, when they move over towards the defense, they do a lot better than their attack. And I guess if Blood Circle Esports are truly that one defender-sided team, then maybe we might see a little bit of a comeback coming in from them. But at the same time, judging from the duels that they took and a lot of these fights coming in from Thundering Eagles, maybe Thundering Eagles are the better team here today. And maybe they're just going to go ahead and finish it off right here, right now. Let's hope for the best. I'm really expecting Blood Circle Esports to, try and stitch out a little bit more from this specific match. Maybe stitch out a few more rounds against Thundering Eagles. But if they're not going to be able to do that, I'm not going to be surprised because Thundering Eagles, they're looking a lot better. यहाँ पर एक प्लांट की तरफ बढ़ते हुए नजर आया। ब्लेड ने वहाँ पर स्पॉट जरूर किया था, प्लेयर को शेरिफ लेके आया है यहाँ पर पहले ही राउंड में स्विच के बाद एंड शॉट्स अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए। ब्लेड की हेल्थ थोड़ी सी लो जरूर है एंड इस वजह से भी कॉल करना स्टार्ट कर दिया। Kind of funny, right, to see the sheriff coming out in the pistol round. जी हाँ बिल्कुल, एंड एक्चुअली सिर्फ वही नहीं है, सयन भी वहाँ पर वही चीज़ करते हुए एंड उन्होंने बेहतरीन तरीके से शॉट भी कनेक्ट किया। ब्लड सर्कल Esports जो डिफेंस है उसको यहाँ पर ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है। निकलो यहाँ पर एक और किल निकालेंगे, रेवन को कंफर्म किया गया। छोटा चेतन यहाँ पर फाइनली कुछ रेजिस्टेंस के साथ आते हुए, बट क्रेटोस उनको काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट जो साइफर का हेल्थ है मेरे हिसाब से वो यहाँ पर डिफरेंस मेकर होने वाला है। 45 हेल्थ पॉइंट्स पे हैं, उनके जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी बी साइड पे पहुंच चुके हैं। एक आसान प्लांट हमें उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है आफ्टर क्लियरिंग बोट हाउस। प्लांट के लिए यहाँ पर जाते हुए 2 प्लेयर्स जरूर है यहाँ पर, जो कि एक प्लेयर मिड से जाएंगे, एक प्लेयर सिटी से आएंगे, एक प्लेयर अभी भी लग करते हुए सिटी स्पॉन की तरफ, उनको यहाँ पर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। इंतजार हो रहा है उनका एंड उसके बाद शायद हमें रशियन देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम जो साइफर है उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी देर जरूर लगाई है, उसका खामियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ सकता है। 3v3 का रीटेक है यहाँ पर, हेल्थ जरूर यहाँ पर ब्लड सर्कल Esports को फेवर करते हुए एंड जो यहाँ पर उनका पोजीशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर वो किल जो है निकालेंगे। क्रेटोस वहाँ पर इंसिनेट आउट है, फिनिक्स की तरफ से कॉल देखने को मिला। पार्थ यहाँ पर इकलौती दीवार बने खड़े हैं साइड के ऊपर, 2 किल निकाले, क्लच की तरफ बढ़े, समय यहाँ पर निकलता हुआ जा रहा है। क्रेटोस को यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा, एक पीक देना पड़ेगा, किल निकालना पड़ेगा। स्पॉट उन्होंने जरूर किया प्लेयर को, बट गलत पीक के लिए जाते हुए स्पॉट किया प्लेयर को, गए यहाँ पर टाइम पे खेलने की कोशिश की गई वहाँ पर पार्थ की तरफ से, 3rd किल निकाला एंड सही मोमेंट पे अपनी टीम के लिए क्लच जरूर किया है। शेरिफ को सेव नहीं कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर थंडरिंग ईगल्स एक और राउंड लेके जाता हुआ असासिन। I mean, at this point, I guess that sheriff doesn't even mean anything for Thundering Eagles, right? The way they went ahead and got that round as well. Beautifully played by Parth, but at the same time, I'm not really sure what Kratos was doing. And on the other hand, trust me, guys, as an Astra, right? I understand that Astra only has like a few amount of stars, but at the same time, it's very, very important on how you manage those stars as well. You have to save up the stars for the retake as well. You have to at least have a star or 2 left out when it comes to the retake, and I guess that is something that Kratos can learn over time, or even after this stream ends, if you can just rewatch the VOD, if you can just take my advice, then it's definitely gonna help him out as an Astra.
Right now, what we're going to be seeing is Saiyan absolutely dominating going towards the A side as he goes out and taps out towards all of these players. Already has secured himself 3 kills, and I guess he's going to go in for the quad as well. Waiting for the heal to come in from the Sage, but I guess Brain Android is going to be the one to take down Phoenix. With that said and done, it's going to be hard to try and finish it up, but no, it's going to be NecroGDs instead. Peeking in through that little gap between the door, towards the door ceiling and the wall as well that is going to be brought up by Mr. Valerian. So 12-2 and it's going to be a match point for Thundering Eagles, and I guess Dinkar, Blood Circle Esports बिल्कुल भी खुश नहीं है यार. जी हाँ, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी परफॉर्मेंस से अभी के लिए, क्योंकि काफ़ी राउंड्स थे जहाँ पर लग रहा था कि ये राउंड जीत सकते हैं, बट एट द सेम टाइम थंडरिंग ईगल्स की तरफ से सिनर्जी देखने को मिली है, जो टीम प्ले उनकी तरफ से देखने को मिला है वो बेहतरीन. क्रेटोस इस पर रेडी हैं यहाँ पर ओडिन के साथ, उनको पता है आखिरी राउंड भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर फुल ऑल इन जाते हैं. बट पूरी तरह से मिड जो पुश है वो थंडरिंग ईगल्स की तरफ से देखने को मिल रहा है. काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ मैं ये चीज़ देख के. पाँचों के पाँचों प्लेयर्स मिड टू ए जाने की कोशिश करें. ब्रेन ड्राइव वहाँ पर ज़रूर कोशिश करते हुए कुछ अलग करने की, रशिंग करने की कोशिश करते हुए, बट जो उनका ब्लाइंड था वो शायद कनेक्ट नहीं हुआ. उस तरफ से वहाँ पर ज़रूर में एक शॉट देखने को मिला है, बट कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है. पार्थ एक्सटी जो कि ऑफ बेहतरीन चलाते हैं, क्या यहाँ पर सेम लेवल ऑफ शॉट्स उनको देखने उनकी तरफ से हमें देखने को मिलेंगे. अभी के लिए कोई भी किल नहीं हुआ है, कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, बट जो मिड कंट्रोल है वो मिल चुका है थंडरिंग ईगल्स की तरफ से, जो काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो ओपन अप करता है. वो ऑप्शंस देखिए बी पुश करना भी स्टार्ट कर दिया. हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे, उन ऑप्शंस पर उन्होंने वर्क करना भी शुरू किया. बेलेरियन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर वो किल निकालते, जी नहीं वो किल नहीं निकालेंगे, बट फाइनली जो निक्रो थे उन्होंने वहाँ पर किल निकाला. 3v4 का सिनेरियो है एंड निक्रो बेहतरीन खेलते हुए एक और जो किल है उन्होंने निकाला, बट फाइनली छोटा चेतन उनको टेक आउट करेंगे. बट जो स्पाइक है मेरे हिसाब से वो भी मिड पे पड़ी हुई है, एंड जो 2 प्लेयर्स हैं वो सीटी स्पॉन से रोटेट करके आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से रेना एक्सपेक्ट कर रहे थे. एंड जी उन्होंने वहाँ पर किल भी निकाला. 3v1 का सिनेरियो एंड फाइनली ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या वो कोशिश बन के रह जाएगी. पार्थ एक्सटी एक किल निकालते हुए साथ साथ में हील किया अपने आप को, बट अब यहाँ पर 1v2 का सिनेरियो है. क्रेटोस आएंगे ओडिन के साथ, उनको कंफर्म करेंगे. एंड अब यहाँ पर जो जीत थी उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा शायद यहाँ पर थंडर ईगल्स को. 12-3 का स्कोर लाइन, वापसी हो रही है यहाँ पर ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स की, बट काफी देर हो चुकी है असासिन. बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है. आई गेस ये sort of ये जो प्ले बनाया था ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स ने, we were expecting that to be coming in the first round, right? on round number 13, or maybe even towards the second half of the first half. So even in the first half, right, we were expecting something like this in the later stages of the first half as well from Blood Circle Esports. But unfortunately, it's too late. And I guess Thundering Eagles, I don't think so they should have a problem in finishing this off. It's Kratos on the Odin. Let's hope he's going to be able to find himself a frag. But no! That is absolutely not how you're supposed to hold on over to the shot position. I guess Saiyan is trying to push in through the Bloodstorms, and with Valerian on the Ares as well, things are going to get really easy for Thundering Eagles. And Saiyan, oh, he's going to miss all of these blades. जी हाँ बिल्कुल. एंड यहाँ पर बेलेरियन की तरफ से हमें किसी भी समय वॉल बैंक देखने को मिल सकता है, बट ब्रायन वो यहाँ पर सभी किल्स लेके जाते हुए हेड जरूर कनेक्ट किया था, बट फिनिक्स यहाँ पर किल निकालने वाले बेलेरियन के ऊपर. सैयन का पोजीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पॉट किया गलत समय पे, रीलोड एंड बाहर का रास्ता दिखा गया. ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर बहुत ज्यादा कम हेल्प पे हैं. सैयन यहाँ पर अपनी टीम से आखिरी प्लेयर है और ट्रिपर का इस्तेमाल जरूर किया गया था, बट वो ज्यादा काम नहीं आने वाली है. पीक आता है एंड इसी के साथ साथ गेम खत्म. थंडरिंग ईगल्स एक बहुत ही बेहतरीन गेम जीत के जाती हुई 13-3 का स्कोर लाइन. एंड जो आज का दिन जिस तरह का रहा है, मैं अब सरप्राइज नहीं हूँ इस रिजल्ट को देखकर. बिल्कुल भी मैं भी सरप्राइज नहीं हूँ दिनकर. मैंने सोचा कि we are going to be seeing storms. I definitely expected one storm though. That is going to be the godlike game that was there for the first match of the day, right? But at the same time, I'm really happy that all of these teams are finding themselves in a position where they can go ahead and compete against the best and against better opponents, where they can see themselves where exactly they stand in the community and what they need to improve on as well. So guys, please don't be disheartened. Go ahead and keep grinding. I really want you guys to keep going and don't give up, because it's not the end of the world. You guys definitely are going to have a lot of chance coming up in qualifier number 3 and 4 as well. But I guess scorecard ready hone wala hai Dinkar, and why don't you go ahead and walk us through that scoreboard? जी हाँ, पार्थ एज एक्सपेक्टेड अपनी टीम के लिए यहाँ पर टॉप फ्रैग करने वाले 16 किल्स, एक्चुअली 17 किल्स के साथ सैयन ने टॉप फ्रैग किया है, बट जो एवरेज कॉम्बैट स्कोर है वो पार्थ का ज़्यादा बेहतर है. 16 किल्स 8 डेथ्स के बाद वो पहले पायदान पर रहेंगे. सैयन 17 किल्स 7 डेथ्स के साथ आए हैं. बट देखिए सभी प्लेयर जो है
किल्स का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो एक्सक्यूज मी, पार्थ, सयन, ब्रेंडर जो टॉप फ्रैगर है, जो बॉटम फ्रैगर है, सिर्फ 4 से 5 किल्स का फर्क है। ये दिखाता है कि टीम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सभी प्लेयर्स ने ली थी। सभी जो प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे कि अपनी टीम के लिए फ्रैग लेके आएँ, एंड सभी प्लेयर्स हाई कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट राउंड में जाने वाले। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बेट सर्कल स्पोर्ट्स की तरफ से, फिनिक्स ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, यहाँ पर कुछ किल ज़रूर निकाले थे स्टार्टिंग में, मिड में, बट एट द सेम टाइम एक इकलौता प्लेयर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्रेटोस ने भी वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट वो भी काफ़ी जगह पर मिस आउट कर गए अपॉर्चुनिटीज़ को। छोटा चेतन रैना थे अपनी टीम की तरफ से, बट स्टिल आज उनका दिन नहीं था, सिर्फ 5 किल्स के साथ आए हैं। स्क्रीमी भी मात्र 5 किल्स के साथ आते हुए, रेवन जेट के साथ खेले थे, उनके पास सिर्फ 7 किल्स हैं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे बेट सर्कल स्पोर्ट्स। बट जिस तरह से हम बात करते हैं, सेटबैक्स हमेशा आते हैं लाइफ में भी, गेम में भी। मेक श्योर करना है कि सेटबैक जो आपका कमबैक हो सेटबैक से ज़्यादा बड़ा हो, एंड उसी की उम्मीद रहेगी मुझे ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स की तरफ से। बिल्कुल याद कर क्या ही बताओ, थंडरिंग ईगल्स का जो परफॉर्मेंस था ऑन एसेंट अगेंस्ट ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स, अगेंस्ट ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स, they can definitely work on quite a lot of things, especially that that controller that they went ahead and picked up as well, right? The Astra, the Astral plays that were being made as well on the server. It wasn't that great, but at the same time, I really want them to go ahead and make a lot of combo plays as well. So Astra, one of the creative ways of using Astra is bringing in those combo plays as well in a specific match. So you combo up the gravity well along with something like the concussion, and you allow one of your duelists to go aggressive and use that specific gravity well into your advantage as well. So the combo plays are very, very important, and I guess if those combo plays are going to be absent in a specific game, then the Astra is going to be quite useless. And at the same time, I guess what Kratos has to work on is his ultimate, the Cosmic Divide, as Dinkar you specifically pointed out as well. When he used the Cosmic Divide in that one round, right? That was not the right way to use the Cosmic Divide as well. But I guess the MVP screen is ready, guys. So why don't we go ahead and take a look at the MVP screen as well? Dinkar, what do you think was going to be the MVP? It's already here. Sasin, I cannot guess. We'll have to work it out with the production next time. Phoenix anyways, वो यहाँ पर अपनी टीम से MVP होने वाले हैं, 11 किल्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पार्थ की, एवरेज कॉम्बैट स्कोर उनके पास सबसे ज़्यादा वो आते हैं 16 किल्स के साथ, 2 का केडी उन्होंने मेंटेन किया। सयन 17 किल्स उन्होंने ज़रूर किए, केडी भी उनका ज़्यादा बेहतर था, बट वो यहाँ पर निराश होंगे थोड़ा सा कि MVP नहीं बन पाए। जस्ट लाइक ब्लड सर्कल स्पोर्ट्स, जो कि आगे आने वाले समय में ज़रूर हमें कमबैक करते हुए नजर आएंगे। रेवन 7 किल्स के साथ थे, क्रेटोस भी बेहतरीन 9 किल्स किए थे। तो एशियन का ये मैप 13-3 का स्कोर लाइन इन द फेवर ऑफ थंडरिंग ईगल्स। अब यहाँ से हमें जो हमारा आगे कल भी गेम्स होने वाले हैं, परसों भी गेम्स होने वाले हैं, तो एक्शन खत्म नहीं होता सासन स्पोर्ट्स पे। Definitely, the action is never gonna stop, guys. We got Valorant action, and that too pumping and full of josh. Wala Valorant action coming up as well every single day. So make sure you subscribe to the Esports YouTube channel and hit that bell notification icon to never miss another update. Talking about Josh, by the way, our sponsors as well for the Esports Premier Series 2021, that is Josh App and Hell Energy Drink. They are bringing in tons and tons of energy, and they are bringing in so many opportunities for the underdog teams and all of the talents out there in the country as well. So please do check them out using the link down in the description below, and support them by downloading their app and buying Hell Energy Drink as well. So yeah, with that said and done, I guess we can go ahead and showcase how exactly the results were as well for the entire day, for the overall day, how exactly each of these games went down. So match number one was GODLIKE Esports as well, right? Who took map of Haven. Match number 2 was Pride Nation Esports and Copiers. Pride Nation Esports, they went ahead and had a clean sweep as well against Copiers. And match number 3 that you guys just witnessed, Thundering Eagles versus team Blood Circle Esports. My bad. Had a little bit of a brain fart moment over there. But yeah, Thundering Eagles and Blood Circle Esports. It was Thundering Eagles to take the victory as well. So I guess, Dinkar, overall, a storm day. Let's hope tomorrow is not going to be a storm. क्या लगता है? जी हाँ, कल मैं उम्मीद करूँगा कि ओवर टाइम ना हो, तब भी 13-9, 13-10 ऐसे गेम्स देखने को मिले। गेम जल्दी आज समाप्त हो गए। वेरिटी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाई गॉडलाइक को। सेम वेंट विद कॉपियर्स एज वेल,
वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए प्राइड नेशन के अगेंस्ट। फिर वहाँ पर ब्लड सर्कल ई स्पोर्ट्स ब्लड सर्कल ई स्पोर्ट्स की तरह थोड़े से मोमेंट्स ऑफ ब्लिंस ज़रूर थे कहीं कहीं पर, बट एट द सेम टाइम थंडरिंग ईगल्स वर जस्ट टू गुड। जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे थे गेम को, वो यहाँ पर आसानी से अपना गेम जीत गए। तो आज एक आसान दिन रहा है जीतने वाली टीम्स के लिए, बट काफ़ी टफ दिन, मैं कहूँगा काफ़ी संघर्ष भरा दिन था वहाँ पर उन टीम्स के लिए जो कि आज जीत नहीं पाए हैं, क्योंकि जो जीत थी वो मैसिव जीत थी, और जो हार है वो भी मैसिव हार हुई है यहाँ पर 3 टीम्स की। एनीवेज, अभी भी काफ़ी एक्शन बचा हुआ है। जिस तरह से आपने बताया, कल भी हमें वहाँ पर 3 गेम्स देखने को मिलेंगे, एंड उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर एक अच्छा बैलेंस्ड गेम प्ले देखने को मिले दोनों टीम्स की तरफ से। Bilkul Dinkar, and guys, trust me, for all the action that we guys brought to you as well. If you loved what we did, you guys can go ahead and check out the casters as well on our social media pages. It's going to be @officialassassin47 for me on Instagram. It's @IamDinkar for Dinkar on his Instagram page as well. So please go ahead and give us a follow. Show us some love and support as well if you guys loved what we did. And with that said and done, I guess we are pretty much done for the day, Dinkar. It was a really energetic day, and it's all thanks to once again Hell Energy Drink and Joshab for bringing in all this energetic performance as well, and putting up such a platform for the underdog teams to showcase their talent as well. So we are going to be watching out for more and more Valorant action coming live to you guys on your screens tomorrow. So don't forget to hit that subscribe button and bell notification and do not miss another update, and we're going to be seeing you guys tomorrow. Thank you so much for tuning in. Good night, goodbye, sweet dreams.